Very good evening, everyone. We'll start our class today. This will be the second class on climatology. Yesterday, I gave a very brief about this very interesting topic and very important topic for this examination. So, just a brief was given. I will again take that class forward. So, just to start with, just initial 5 minutes will be like a revision of the previous class. So okay, so we were studying about the climatology, and this is class 2. So climatology, we focus on the atmospheric part of the earth. So this atmosphere of earth has evolved over a period of time. We talked that it went through 3 phases. Initially, when earth was formed, it was having helium and hydrogen. Then volcanic activities. Earth was having too much of volcanic activity. It was extremely hot in the initial phase. So at present there are hardly very few volcanoes you see on the earth, and majority of volcanoes are below ocean actually. And then eventually that uh, atmosphere gave way to the current atmosphere. So we talked about them in length. So initially your atmosphere was this much, that is hydrogen and helium, hydrogen gas and helium gas, right? Then it got involved into this, which contained all these gases: methane, ammonia, water vapor, carbon dioxide, and nitrogen. All these gases were there. Now presently your atmosphere contains this nitrogen and oxygen. So these are the three major phases. So this atmosphere has evolved over a long period of time. Evolution is a slow process. Okay, then I talked about its composition. So I told you that 78% of it is your nitrogen, 21% is oxygen, and then 0.93% is your argon, and carbon dioxide is very small. So there are few things like many people get confused into the percentage. So you will encounter them percentage, uh, parts per thousand whenever you talk about salinity. So salinity of ocean is 3.5% or 35 parts per thousand. पर थाउजेंड निकालेंगे तो भाई 10 और बढ़ा दूं, 100 में 3.5 तो 1000 में 35, 1000 में 35. अगर इसी को मैं ppm में लिखूं पार्ट पर मिलियन में, तो 1000 और जोड़ दो इसमें, तो 35,000 ppm हो जाएगा. तो उसी तरीके से CO2 का जो परसेंटेज है वो बहुत कम है, 0.04%. तो बेटर ये होता है इसको ppm में बताया जाए. तो हिस्टोरिकली इसकी स्टडी ppm में होती है. तो 1000 में बनाना होता तो 100 में 0.04 है, तो 1000 में कितना होता, 0.4 होता. ये परसेंट हो गया, ये पीपीटी होता. अगर ppm में बताना चाहता हूँ तो 1000 जोड़ दो इसमें, तो 400 ppm. ठीक है. सो दिस इज जस्ट सिंपल मैथमेटिक्स. कुछ लोगों को परेशान करता है, तो आई जस्ट टोल्ड. ठीक है. देन वी टॉक्ड अबाउट के और क्या गैसेस हैं, बिकॉज इनके बारे में तो आप पढ़ोगे नहीं ज्यादा. कि नाइट्रोजन आपका नॉर्मली इनर्ट रहता है, तो ये नाइट्रोजन यूज भी नहीं कर सकते डायरेक्टली. एंड नाइट्रेट जो बनाते हो या तो प्लांट्स में बनाते हो या नेचर में दूसरे प्रोसेस से बनता है. वी विल टॉक अबाउट दैट. ऑक्सीजन इज डेफिनेटली समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूनिक टू द अर्थ. तो अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है, अर्थ का एटमॉस्फेयर बहुत यूनिक है. देखो कल भी मैं ये बात कर रहा था आपसे कि ये आपका सन है, तो अराउंड सन यू फर्स्ट यू हैव मरकरी, then you have Venus, then you have Earth, then you have Mars. तो ये मरकरी पे तो एटमॉस्फेयर है ही नहीं. ये सन की जो सरफेस से कॉन्स्टेंटली एंड रेगुलरली सोलर विंड्स चलती हैं. सोलर विंड्स आर एक्चुअली स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स. तो इन्होंने स्ट्रिप ऑफ कर दिया. वीनस, अर्थ और मार्स में एक ये जो है
इनके पास एटमॉस्फेयर है। तो वीनस का जो एटमॉस्फेयर है आज की डेट में बहुत डेंस एटमॉस्फेयर है, वेरी डेंस डेंस एटमॉस्फेयर। अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर को मैं 1 यूनिट बोलता हूं तो अर्थ का एटमॉस्फेयर का 90 टाइम्स ये है। तो अर्थ पर जितना भी एटमॉस्फेयर होगा, अगर मैं आपको वीनस पर जाकर डाल दूं, आप 90 टाइम्स अंडर, 90 टाइम्स ज्यादा प्रेशर के अंडर होंगे आप। तो अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर को अगर 1 बार बोलते हैं तो दिस विल बी 90 बार। तो अर्थ पे वीनस पे यू विल एक्सपीरियंस दिस मच प्रेशर। एंड कितना यहाँ पे कितना एक्सपीरियंस करोगे, ये जो मार्स पे जस्ट 1% है अर्थ का, 1% ऑफ अर्थ, जस्ट 1% ऑफ इट। तो यहाँ पे आपको बहुत ही 0.01 बार एक्सपीरियंस होगा। तो मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत ही थिन है, तो वी विल से दैट इट्स वेरी थिन एंड इट्स वेरी थिक। एंड यहाँ पे जो आपके मार्स का एटमॉस्फेयर है, इसमें बेसिकली 96 ये मार्स में 96% CO2 है, लेकिन ये बहुत थिन है। एंड वीनस में आपकी, वीनस इज आल्सो हैविंग 95% CO2 एंड 3.5% सल्फर। तो इस पर सल्फर के क्लाउड्स हैं एंड 95% CO2 है आपकी। तो वीनस का जो एवरेज टेम्परेचर है दैट रिमेन्स अराउंड 450। तो वीनस पे लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। हालांकि मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत थिन है। तो जितनी भी एक्सप्लोरेशन हो रही है इसी एटमॉस्फेयर, इसी के लिए चल रही है कि क्या मार्स पे लाइफ ढूंढ सकते हैं कि नहीं, क्या मार्स पे लाइफ ग्रो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिकॉज वीनस पे देयर इज नो चांस एट ऑल। और इनके एटमॉस्फेयर अभी कैसे हैं, इससे यही पता चलता है कि अर्थ का पहले कैसा था और इनके साथ क्या हुआ होगा। तो ये मरकरी पे तो है ही नहीं, वीनस, अर्थ और मार्स के जो एटमॉस्फेयर के बारे में मैंने बताया। तो अर्थ का एटमॉस्फेयर यूनिक है इन दैट सेंस। एंड व्हेन यू थिंक अबाउट कि एटमॉस्फेयर का क्या यूज है, क्या कंट्रीब्यूशन इन जनरल यू वांटेड टू टॉक अबाउट, देन यू हैव टू कंपेयर अदर प्लैनेट्स। तो तब आपको पता चलेगा ये क्या है। तो एट द एंड ऑफ द क्लास आई विल डिस्कस ऑल दोस पॉइंट्स, बिकॉज पहले डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। तो कल आपको ये बताया था। बाकी मेन गैसेस जो हैं वो आपकी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन जो है 0.93% के आसपास बताया था मैंने आपको, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। और ये जो है परसेंटेज का CO2 का तो आप वैसे ही मेजर करेंगे व्हेन यू वुड टॉक अबाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, climate change. And other gases are also there. Methane you will find, helium, neon, argon, krypton, xenon, ozone you will also find. ठीक है, but they are in very small. And but mind you these are ड्राई कंपोजिशन। तो वाटर वेपर हमने नहीं लिया है, बिकॉज वाटर वेपर सीजन से सीजन में वेरी करता है, रेन के बाद रेन के पहले वेरी करता है, लैटिट्यूड के साथ वेरी करता है। तो इसे बता पाना मुश्किल है। ठीक है, ओवर लैंड ओवर ओशन वेरी करेगा। तो एंड डस्ट पार्टिकल्स का भी परसेंटेज नहीं बताया है, और डस्ट पार्टिकल का परसेंटेज भी वेरी करता है। इंडस्ट्री एरिया में ज्यादा होगा, सिटीज में ज्यादा होगा, डिपेंड करेगा वेयर एवर यू आर लोकेटेड। देन वी टॉक्ड अबाउट प्रेशर। ठीक है, तो अर्थ की सरफेस पे इफ यू आर स्टैंडिंग हियर तो यू एक्सपीरियंस प्रेशर बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ दिस एयर कॉलम। तो इसका जो भी वेट होगा डिवाइडेड बाई दिस स्मॉल एरिया विल बी द प्रेशर। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है, ये सबने पढ़ा है। तो फोर्स क्या है, फोर्स यहाँ पे वेट है इस एयर कॉलम का। तो ये एयर कॉलम आपने देखा होगा यहाँ पर डेंसर है और ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये रेयरर होता जा रहा है, मतलब। तो दिस थिंग यू आर आल्सो सेइंग। तो अगर मैं यहाँ पे खड़ा कर दूं आपको, तो आपको जो प्रेशर फील होगा वो इसका वेट होगा। तो प्रेशर ऊपर जाने पे कम होगा। ठीक है, तो प्रेशर ऊपर जाने पे कम हो रहा है। ये डेंस, ये एटमॉस्फेयर भी आपका रेयर होता जाता है एज यू मूव अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, राइट। सो इफ यू आर स्टैंडिंग हियर तो आपको इतना ज्यादा प्रेशर फील होगा। इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन द हियर देन यू विल एक्सपीरियंस दिस मच प्रेशर ओनली। तो ये इतना ही वेट एक्सपीरियंस होगा आपको। तो बहुत लो प्रेशर फील करेंगे आप। और इनफैक्ट किसी को बोलेगा ऑक्सीजन कम हो गई, क्योंकि ऑक्सीजन ऑफकोर्स कम होती जाएगी ऊपर जाएंगे तो पहाड़ी एरिया में ट्रैकिंग करने जाते हो और जैसे लद्दाख की तरफ जाते हो और इनफैक्ट हाई एल्टीट्यूड में होते हो, तो देन ये प्रॉब्लम कॉमन होती है। ऑक्सीजन की कमी से बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो नॉट एवरी, लोग फेंट होने लगते हैं वहां पे। दैट्स आल्सो बिकॉज ऑफ दैट कि वहाँ। ठीक है,
देन एक जनरल आइडिया दिया था आपको कि भाई हाइट के साथ जो रिडक्शन है वो कितना, तो यू जस्ट इमेजिन थिन लेयर ऑफ थिन लेयर ऑफ एयर और गैसेस around the earth which is hanging around the earth because it is every gas particle is having some weight and they are pulled by the gravitational force of the अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा उसके सेंटर की तरफ उनको पुल किया जा रहा है, अर्थ के सेंटर की तरफ। तो आप देख सकते हैं मात्र 5.5 किलोमीटर मैंने बताया था, 6 किलोमीटर के आसपास में, विद इन दिस 50% ऑफ द वेट विल बी देयर। 50% ऑफ द, अगर आप इसके ऊपर चले जाते तो प्रेशर एकदम आधा हो जाता है 50%। तो जनरली ग्राउंड पे खड़े हैं तो आपको 1013 मिली बार, अगर मैं बोलूं बार में, ये मिली बार में उन्होंने प्रेशर को, प्रेशर की कई सारी यूनिट है, मिली बार है, मिली बार बोल दो, बार मिली बार तो एक ही बात हुई। पास्कल बोल सकते हो आप, पाउंड पर स्क्वायर इंच बोल सकते हो, एमएमएचजी बोल सकते हो, मिलीमीटर ऑफ जो मरकरी कॉलम कितना राइज करता है। तो लेट्स नॉट गो इनटू द साइंस, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि मान लीजिए कि भाई 1013 मिलीमीटर मिली बार जो है यहाँ पर प्रेशर है, तो आप अगर 5.5-6 किलोमीटर के आसपास हाइट पे चले जाएंगे तो ये लगभग 500 मिली बार रह जाएगा। तो आप इतना, हाफ ऑफ द प्रेशर एकदम आधा रहेगा यहाँ पे। इस प्रेशर को समझना इसलिए जरूरी है, जब हम क्लाउड्स को बताएंगे किसका एक्सपेंशन हो रहा है, किसका है कौन सा क्लाउड ऊपर उठने पे कूल होगा, कौन सा नीचे आने पे हीट अप होगा, ठीक है, फिर तब दिक्कत मत करना कि प्रेशर समझ में नहीं आया। तो प्रेशर आपको वैसे भी आना चाहिए, ठीक है। और ये विद इन 16 किलोमीटर मैंने बताया था कि 90%, मतलब 90% गैसेस सी के नीचे हैं। तो यू कैन डेफिनेटली इमेजिन कि डेंसिटी बहुत ज्यादा है नीचे और ऊपर बहुत कम है। और जस्ट अप टू 31 किलोमीटर पे आपका 99% गैसेस, जस्ट ऊपर 1% गैसेस हैं। तो 30 किलोमीटर के बाद आपके जस्ट 1% ऑफ द गैसेस हैं। We will talk about those layer. They also play a very major role. और आपने देखा ही था ओजोन का परसेंटेज कहीं काउंट ही नहीं हो रहा था, कहीं आ ही नहीं रहा था। तो ओजोन लेयर will be there, other layer will be there, but everything which is happening, तो इसलिए we will confine our study to this major part only, ठीक है। तो प्रेशर का वेरिएशन अब with the height, this is the variation of pressure with the height। और दूसरा मैंने आपको बताया टेम्परेचर के बारे में। तो आई टोल्ड यू दैट कि सन से निकलने वाली रेडिएशन, सन की सरफेस का टेम्परेचर 6000 केल्विन है, सरफेस टेम्परेचर है, माइंड यू, नॉट कोर टेम्परेचर, ओके। आउटर सरफेस टेम्परेचर सन के बारे में वी कैन टॉक अबाउट व्हेन वी टॉक अबाउट स्टार्स एंड एवरीथिंग। सो यहाँ से जो रेज आती हैं दे आर बेसिकली शॉर्ट वेव रेडिएशंस। ये शॉर्ट वेव रेडिएशंस जो है आपके एटमॉस्फेयर से निकल के आ जाते हैं। एटमॉस्फेयर की जो लेयर है, गैस की लेयर है, so that layer of gas is not able to stop it, so it will enter and it will reach the surface of earth. Once it reaches the surface of earth, it will heat the earth and earth जो है emit करेगी। तो earth से जो emit हो रहा है ये long wave radiation है। These gases they will absorb, इनको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये काइंड ऑफ अ ग्रीन हाउस होगा, जिस तरीके से हिली एरियाज के अंदर, हिली एरियाज के अंदर यू हैव दिस प्लास्टिक पॉलीथिन का घर बना दिया, उसके नीचे पेड़ पौधे लगा दिए, खेती कर ली आपने, क्योंकि ये आउटसाइड तो ठंडा होगा लेकिन यहाँ पे जितने भी जनरली जो आपका सनलाइट आएगा वो ट्रैप हो जाएगा, तो ये धीरे धीरे गर्म होने लगेगा। तो वो लेकिन यहाँ पे ग्रीनरी हो जाएगी, बाकी जगह आप खेती नहीं कर पाएंगे। उसी तरीके से जैसे कि आपकी कार वगैरह खड़ी होती है तो उनमें विंडो से जब चली जाती है लाइट वगैरह, तो दिन में बहुत गर्मी के टाइम में आपने देखा होगा अंदर में टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। दिस इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो सिमिलरली ये गैसेस की जो लेयर है, एटमॉस्फेयर की लेयर, दिस इज आल्सो एक्टिंग लाइक दैट ओनली। तो ये इस वजह से ये इसका टेम्परेचर, तो इसका मतलब है टेम्परेचर यहाँ से ये एटमॉस्फेयर हीट हो रहा है, तो आप सरफेस से ऊपर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्लाइन करेगा, टेम्परेचर लैप्स करता जाएगा। तो लैप्स रेट क्या होगा टेम्परेचर का, we will talk about, ये एक important phenomena होगा कि लैप्स रेट किस तरीके से वेरी करता है when we talk about rain and all these things, ठीक है। तो टेम्परेचर घटेगा तो सही। तो टेम्परेचर अगर अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हैं तो उसके डिक्रीज होने के दो कारण हैं, एक तो डिस्टेंस बढ़ रही है, दूसरा आपका एटमॉस्फेयर भी रेयर होता जा रहा है, रेयरर होता जा रहा है, नॉट रेयर, रेयरर होता जा रहा है, मतलब कम डेंस होता जा रहा है। यानी आपने देखा था कि विद इन 5 किलोमीटर आपकी 50%, मतलब सारी की सारी गैस एक तरीके से कह सकते हो 50% विद इन 6 किलोमीटर हो गई। 16 किलोमीटर
अगर अगले 10 किलोमीटर की डिस्टेंस और देखते हैं तो उसके अंदर 90% गैसेस उसके नीचे ही है। तो एटमॉस्फेयर की लेयर को यू स्टडी अप टू 100 किलोमीटर। सो द थिंग इज दैट कि मोस्ट ऑफ द गैसेस आर बिलो ओनली। सो ऊपर जाने पर टेम्परेचर तो डिक्लाइन होगा टेम्परेचर का, बट देयर विल बी टू रीजन्स। एक तो ये होगा कि योर डिस्टेंस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज इंक्रीजिंग, एंड सेकंड रीजन विल बी एटमॉस्फेयर इज बिकमिंग रेयरर। आई होप ये तो बहुत बेसिक है, कल मैंने बताया ही था। एंड देन आगे जब आएंगे तो वी विल टॉक दैट कि थिंग्स आर नॉट एज सिंपल। आपके सन से आने वाली रे होगी, कुछ परसेंट तो इसका रिफ्लेक्ट भी होगा यहाँ से। तो एटमॉस्फेयर कुछ परसेंट को रिफ्लेक्ट करता है, इसको 6 यूनिट बोलते हैं। मान लीजिए अगर 100 यूनिट यहाँ से आ रहे हैं, सम पोर्शन विल बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द आउटर स्पेस ओनली, उसको 27 यूनिट बोलेंगे। ओनली फ्यू परसेंट विल बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, इसको 2 यूनिट बोल दूं मैं, तो 2 6 एंड 35, 27 बिकम्स 35, ये अल्बीडो है। तो आउटर स्पेस की अल्बीडो 27 यूनिट, इस एटमॉस्फेयर की अल्बीडो 6 यूनिट एंड अर्थ की अल्बीडो 2 यूनिट। जब हीट बजट की बात करेंगे तो आई विल टॉक अबाउट अल्बीडो। अल्बीडो क्या है, जो सन की जो आपकी तरफ हीट आ रही है उसका कितना परसेंटेज वहां से रिफ्लेक्ट हो गया। रिफ्लेक्ट हो गया दैट मींस आप कोई इंपैक्ट ही नहीं किया, बस चला गया, पास ऑन। ठीक है। सो एक सिंपलिस्टिक वो बताया था वार्मिंग इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट। उसके अलावा देखिए आपको ये भी समझना होगा कि इन गैसों ने जो एब्जॉर्ब किया तो दे आल्सो एमिट। सो इस वजह से एटमॉस्फेयर आपका ये हीटअप रहता है। तो ये एटमॉस्फेयर का बड़ा रोल है। अगर इफ ये लेयर नहीं होती, इफ दिस लेयर वाज नॉट देयर, तो अर्थ का टेम्परेचर जो है, आज एवरेज टेम्परेचर कितना मानते हैं हम अर्थ का, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ यू रिमूव द एटमॉस्फेयर, विदाउट एटमॉस्फेयर इट वुड हैव बीन -15 डिग्री सेंटीग्रेड। -15 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर होने की वजह से अर्थ आपकी 30 डिग्री सेंटीग्रेड वार्मर है आज की डेट में। 30 डिग्री सेंटीग्रेड वार्मर होने का मतलब होता है कि आपकी अगर अर्थ का टेम्परेचर -15 होता, अगर अर्थ का टेम्परेचर -15 होता, कैन यू बिलीव कि अर्थ पे पानी जो है, वाटर जो है, कभी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर पाता? तो आपकी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल चल पाती क्या? आपको फ्रेश वाटर मिल पाता क्या? नहीं मिलता। तो दिस इज लाइक, ये जो गैसेस हैं ग्रीन हाउस, ये जो एटमॉस्फेयर की लेयर है, इसका बहुत बड़ा रोल है आपके अर्थ को हैबिटेबल बनाने में। तो वी विल टॉक अबाउट एट द एंड ऑफ द चैप्टर के एटमॉस्फेयर के क्या क्या रोल हैं। दिस इज वन ऑफ द मेजर सिग्निफिकेंट। बाकी तो लाइफ के हायर फॉर्म्स इवॉल्व इसलिए हो पाए बिकॉज ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन नहीं होगा तो लाइफ के हायर फॉर्म नहीं होंगे। ये एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो वाटर इसमें ऑल 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वाटर वेपर, लिक्विड वाटर एंड आइस शीट्स। ये फ्रोजन ही रहता तो लाइफ नहीं हो सकती थी, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल नहीं चलती, फ्रेश वाटर नहीं होता, रिवर्स नहीं होते, नथिंग वुड हैव बीन देयर। और फिर बाद में देखेंगे एटमॉस्फेयर आपका हीट डिस्ट्रीब्यूट भी करता है। सो अब देन वी ऑलरेडी टॉक्ड कि भाई जब आपका एटमॉस्फेयर, आपने अर्थ का इंटीरियर देखा तो दिस वाज आल्सो इन लेयर फॉर्म। ठीक है। तो कोर, मेंटल एंड क्रस्ट, और ये 3 लेयर्स हैं। तो ये लेयर कंटिन्यूज इन द एयर आल्सो। तो ये जो पहली लेयर है आपकी, वी कॉल इट ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपो मींस टर्बुलेंट लेयर। इसके ऊपर की लेयर जो है एकदम यहाँ पे गैसेस को आप बता सकते हो, इसके अंदर जो हैवियर गैसेस होंगी यहाँ होंगी, और लाइट जो होती जाएंगी वो ऊपर, और लाइटर, लाइटेस्ट, इस तरीके से होगा। लेकिन ये टर्बुलेंट लेयर है, ये मिक्स लेयर है, इसमें इतनी ज्यादा मिक्सिंग रहती है कि इसका कंपोजिशन भी सेम रहता है, एंड यू कांट डिस्टिंग्विश द अदरवाइज। तो जो गैसेस को एज पर देयर वेट अलाइंड होना चाहिए था। तो इनफैक्ट कुछ होमोस्फीयर, हेट्रोस्फीयर के फॉर्म में भी डिवाइड करते हैं। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल्स, जस्ट स्टिक टू द सिंपल जनरल परसेप्शन कि भाई आपका एटमॉस्फेयर जो है वो लेयर्ड है। तो लेयर्ड है तो कुछ कुछ लेयर्स हैं और उनके कुछ कुछ स्पेसिफिक रोल्स हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड देम। ये किसी को ये तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि सर मुझे ये लेयर नहीं रटी जा रही, बिकॉज आई विल डिस्कस अबाउट ईच लेयर इन डिटेल। अगर आपको लेयर नहीं रटी जा रही तो इसका मतलब आप बहुत मतलब आप इनफैक्ट यू आर नॉट इवन स्टडिंग द एटमॉस्फेयर, यू आर जस्ट ट्राइंग टू रिमेंबर द नेम। जब इसको डिटेल में पढ़ लेंगे तो फिर नाम तो याद हो ही जाएंगे। अगर इनकी जगह लेयर के नाम स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर की बजाय इनके कुछ
अमित, सुमित और विनीत, तो ऐसे कुछ नाम होते तो सबको याद हो जाते हैं। तो ऐसा एक्चुअली आपको नाम से ज्यादा इनको समझना जरूरी है कि इनका रोल क्या है, why we have divided them in this manner and what role they play rather than just remembering the name. So troposphere, ये पूरी की पूरा चैप्टर आपका यूजुअली इसी में कन्फाइंड रहेगा। जब हम साइक्लोन्स की बात करेंगे, जब हम साइक्लोन्स की बात करेंगे, रेन की बात करेंगे, और आप क्लाउड्स की बात करोगे, ड्रॉट की बात करोगे, प्रेसिपिटेशन इन वेरियस फॉर्म्स बात करोगे, वो सब यहीं पे आएंगे। दे आर कन्फाइंड टू ट्रोपोस्फियर ओनली। तो जनरली क्लाउड्स नेवर क्रॉस दिस, लेकिन एक डिफरेंट जो थंडरस्टॉर्म वाले क्लाउड्स हैं, दे डू क्रॉस ट्रोपोस्फियर वाली लेयर को क्रॉस करके चले जाते हैं। दे क्रॉस दिस लेयर एंड दे डू रीच अप इनटू द स्ट्रेटोस्फियर। अब स्ट्रेटोस्फियर को बुक्स में डिफरेंट तरीके से, क्योंकि ओजोन लेयर जो है आपकी इसी स्ट्रेटोस्फियर में लाई करती है, तो मैनी पीपल हैव डिवाइडेड दिस लेयर इनटू टू पार्ट्स, ओजोनोस्फीयर एंड स्ट्रेटोस्फियर। एंड बट मेजॉरिटी ऑफ टेक्स्ट में और कहीं पे भी जनरली सभी लोग इसे स्ट्रेटोस्फियर ही बोलते हैं। तो आई विल एक्सप्लेन इन बोथ द वे। उसके बाद मीजोस्फीयर की लेयर आएगी, देन यू विल हैव थर्मोस्फियर, एंड आफ्टर दैट यू विल हैव एक्सोस्फियर। ठीक है। सो दूसरा ये भी होगा कि आपका ये जो ट्रोपोस्फियर, वी विल टॉक अबाउट इट, बट वैसे बता रहा हूँ, ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर को मैंने एज एक लाइन तो दिखा दिया है, लेकिन दिस इज नॉट लाइक दैट। ट्रोपोस्फियर जो है ट्रॉपिक्स पे जो होगा वो उसकी हाइट होगी कोई 18 किलोमीटर के आसपास, और पोल्स पे उसकी हाइट होगी कोई 12 किलोमीटर के आसपास। सो दिस इज नॉट जस्ट अ फिक्स, तो इसलिए जगह जगह 12 to 18 किलोमीटर ऐसे लिखा होगा। तो दिमाग में आएगा कि एक स्फीयर होगा, एक सर्कल है मान लीजिए, या स्फीयर है, तो उसकी दो रेडियस कैसे हो सकती है। तो दिस इज, इट्स अ मच लार्जर स्केल पे बात कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी डिपिक्ट इट एज ए लेयर, बट ऐसा नहीं है कि एक समान रेडियस पे ही होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर, ये नीचे ट्रोपोस्फियर। ओके, तो ये जो लेयर्स मैंने अभी जो बताई हैं आपको, ये जो लेयर्स हैं आपकी, तो फर्स्ट लेयर इज योर ट्रोपोस्फियर। तो इसी में आपके ज्यादातर प्लेन्स वगैरह इसी में चलेंगे, जितनी रेनफॉल वगैरह, जितने भी क्लाउड्स वगैरह होने, यू विल ऑब्जर्व एवरीथिंग हियर। फिर कई बार टेम्परेचर नापने के लिए और बाकी एटमॉस्फेयर की स्टडी करने के लिए रेडियो साउंड आप एटमॉस्फेयर में वो स्टडी करने के लिए गुब्बारे छोड़ते हो, उसको रेडियो साउंड बोलते हो। कई बार उसमें किताबों में लिखा रहता है, तो नॉट टू वरी, एक गुब्बारा है और कुछ नहीं है, उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट है, टेम्परेचर वगैरह, ह्यूमिडिटी वगैरह, बाकी चीजें स्टडी करने के लिए। सो लॉन्ग टर्म स्टडीज के लिए ये यूज करते हो आप। देन यू सी मैनी शूटिंग स्टार्स, बहुत सारे आपको रात में कोई तारा बोलेगा, टूटता हुआ तारा बोलेगा, कोई शूटिंग स्टार बोलेगा, कोई मीटियोर बोलेगा, वट एवर यू से। तो you see them mostly in the mesospheric layer. This mesospheric layer will be used for that purpose. Okay, तो ये जो मेसोस्फेरिक लेयर में ये आपको दिखाई देंगे। तो ये शूटिंग स्टार्स बोलते हो आप इनको, या टूटता हुआ तारा बोल सकते हो, फॉलिंग स्टार बोल सकते हो, या मीटियोर्स बोल सकते हो। ठीक है, तो कोई भी डेब्रिस जो स्पेस से निकला है, स्पेस से ओरिजिनेट होने वाले जो पत्थर के टुकड़े, स्पेस मटेरियल जो है, अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर की तरफ बढ़ने लगता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, मीटियोरॉइड। अब जब जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाता है, एटमॉस्फेयर की तरफ, एटमॉस्फेयर में आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, मीटियोर। और ये मीटियोर जो होगा अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही बर्न हो जाएगा। इन केस बर्न ना होकर यहाँ टकरा जाता है, यहाँ पहुंच जाता है, तो ये क्या हो गया, मीटियोराइट। तो मीटियोराइटिक पुराने जमाने में जब एटमॉस्फेयर नहीं रहा होगा या थिन रहा होगा, तो अर्थ पे बहुत सारी बॉम्बार्डिंग मीटियोराइट ने की, बहुत सारे गड्ढे भी बनाए। और ये जिनमें, जैसे कि आपका एटमॉस्फेयर नहीं है मरकरी का, तो मरकरी हैज सो मेनी क्रेटर्स बिकॉज सो मेनी particles, these meteoroids move from the
move from this space and they hit this mercury. लेकिन मरकरी कोई एटमॉस्फेयर है, उसे बचा नहीं पाता, तो you have so many craters. तो मरकरी की सरफेस जो है वो इट इज फुल ऑफ सच क्रेटर्स, तो बहुत सारे गड्ढे उस पर एकदम जम के हैं, ठीक है। तो यू सी देम हियर, ओके, यू सी देम हियर ओनली, ओके। Okay, so then this is one phenomenon that you see mesosphere. Then you have this auroral lights. तो auroral lights जो होती हैं आपकी, we will auroral lights जो होती हैं ये थर्मोस्फीयर वाले above 100 किलोमीटर की हाइट पे आपको दिखाई देंगी, you will see them near North Pole and South. अभी बताएंगे, ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। These lights are because of मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटोस्फीयर नाम का इस तरीके का कोई एटमॉस्फेरिक लेयर का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। आयनोस्फीयर क्या है, जैसे कि ओजोनोस्फीयर है कि ओजोन की लेयर है, आयनोस्फीयर है कि एक आयंस की लेयर है, एक लेयर है जहाँ पे गैस जो है आपकी आयनाइज्ड फॉर्म में, और आयनाइज्ड फॉर्म में गैस जो है तो वहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लोट कर रहे हैं, एंड वहां पे पॉजिटिव पार्टिकल्स भी फ्लोट कर रहे हैं, आयंस भी फ्लोट कर रहे हैं। सो नेगेटिव पॉजिटिव पार्टिकल्स जो है चार्ज पार्टिकल कहलाएंगे, और इन्हीं को हम आयंस भी बोलेंगे। सो दे फ्लोट, दैट्स यू कॉल दैट अ आयनोस्फीयर। तो आयनोस्फीयर की शुरुआत यहाँ से होती है, इट एक्सटेंड अप टू हियर आल्सो। तो ये आयनोस्फीयर जो है ये इस रीजन में जो है आपका एटमॉस्फेयर प्लाज्मिक स्टेट में, इस प्लाज्मिक स्टेट का मतलब है आयनाइज फॉर्म में। आयनाइज जो गैसेस हैं नॉर्मली सॉलिड लिक्विड गैस हो गई आपके, अब गैस आयनाइज फॉर्म में होती हैं तो उनको बोलते हैं प्लाज्मा। तो यहाँ पे आपका एटमॉस्फेयर प्लाज्मिक फॉर्म में। तो आयनोस्फीयर नाम की जो चीज होगी आप पढ़ोगे, दिस इज प्लाज्मिक स्टेट ऑफ योर एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे आपका एटमॉस्फेयर प्लाज्मिक स्टेट में है। तो वी विल टॉक अबाउट आयनोस्फीयर, मैग्नेटोस्फीयर आल्सो, बट दीज आर द 5 डिविजन्स के आपके ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर बियॉन्ड 600-800, तो देयर क्लासिफिकेशन माइट वेरी स्लाइटली। तो बहुत ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है फॉर एवरीथिंग, ओके। सो टेम्परेचर का वेरिएशन इन ऊपर की लेयर्स में मैं बता देता हूँ, एंड वी विल डिस्कस देम आल्सो। तो जस्ट फॉर योर नॉलेज, दिस इज ट्रोपोस्फीयर वाली ये जो नीचे की लेयर है, ये ट्रोपोपोज ऑफ कोर्स इन्होंने इस तरीके से दिखाया होगा। तो ये इस लेयर में ऊपर की तरफ जाने पर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है आपका। तो हम बताएंगे टेम्परेचर लैप्स रेट क्या होगा, कहीं पे लैप्स रेट अलग होगा। तो टेम्परेचर विल लैप्स, एनवायरमेंटल लैप्स रेट in normal condition, just without considering any cloud, without considering any moisture, you consider, तो 65 मीटर ऊपर जाने पे आपका 1 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है। जिस तरीके से अर्थ के नीचे 32 मीटर जाते हो तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर राइज हो जाता है, यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है, यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। और अर्थ के नीचे 1 डिग्री सेंटीग्रेड 32 मीटर जाने पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता था। ये आइडियल कंडीशंस थी, ठीक है। तो दिस इज एनवायरमेंटल लैप्स रेट है। मैं आगे बाद में इन सब में अंतर बताऊंगा। एनवायरमेंटल लैप्स रेट मतलब टेम्परेचर लैप्स कर रहा है, कम होता जा रहा है। आपकी मनी लैप्स कर गई, आपकी एक्सपायरी डेट लैप्स हो गई, नहीं बोलते तो लैप्स, टेम्परेचर भी लैप्स होता है, मतलब ऊपर की तरफ जाने पे टेम्परेचर कम हो जाए। बस अंग्रेजी में उसको बोल दिया लैप्स रेट, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिर देन यू हैव स्ट्रेटोस्फीयर का लेयर, और इसी में जो है ओजोन की लेयर जो है यहीं पे डोमिनेंट होती है। तो सबसे पहले, क्योंकि ट्रोपोस्फीयर में तो सारी की सारी ये यूनिट ही पढ़नी है, तो आई विल टॉक अबाउट दिस ट्रोपोस्फीयर एंड अदर लेयर्स जो है कि इनका क्या रोल है, इनका क्या इंपॉर्टेंस है, और हिस्टोरिकली क्या बनी है। वो थोड़ा सा केमिस्ट्री है, आई डोंट थिंक एग्जाम उतना पूछता है। आई हैव स्टडीड द ओजोन लेयर इन डिटेल बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम केमिस्ट्री बैकग्राउंड, तो थोड़ा सा उसे आवश्यकता नहीं जानने की। देन मीजोस्फीयर की लेयर आएगी, उसके बाद आपकी जो लेयर आएगी थर्मोस्फीयर, देन एक्सोस्फीयर,
ओके, देन लेट्स मूव। सो ये जो आपकी ओजोन लेयर है, ओजोन तो जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कि सन से रेज आती हैं, सनलाइट जो होती है, सन से जो रेडिएशन आता है, सन से जो लाइट आती है उसको बोलते हैं सोलर रेडिएशन। तो किसी भी मतलब हीट ट्रांसफर करने के लिए सन यहाँ है, अर्थ यहाँ है, अब बीच में तो वैक्यूम है, तो ना तो कोई ऐसा लिक्विड होता जिससे फ्लो करके चला जाता हीट यहाँ से यहाँ तक, तो हम उसे बोलते कन्वेक्शन। अगर कोई पाइप होता जिसमें इधर गर्म कर दिया और ये अपने आप हो गया, तो हम उसे बोलते कंडक्शन। और अगर कोई कुछ नहीं है, देन आल्सो हीट इज गोइंग, दैट इज कॉल्ड रेडिएशन। तो सन से तो रेडिएशन ही आ सकता है। ओके, तो यू विल टॉक अबाउट सोलर रेडिएशन। तो सन से सोलर रेडिएशन एमिट होता है, तो अर्थ की तरफ आने वाला जो होता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन कहा जाता है। इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इसको शॉर्ट में आगे से अंग्रेजी में इंसोलेशन बोला जाएगा, इंसोलेशन। इनकमिंग सोलर रेडिएशन को इंसोलेशन बोल देंगे, अंग्रेजी का शब्द है, बस इसी को शॉर्ट करके बना दिया इंसोलेशन। ठीक है, सो नॉट टू वरी। तो यहाँ से जो लाइट जो आती है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसमें बहुत एनर्जी की ऊर्जाएं होती हैं। तो इसको हम एक स्पेक्ट्रम में इसकी ऊर्जा को, एनर्जी को आप मेजर करते हो फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में या वेवलेंथ के फॉर्म में। तो जो एनर्जी होती है किसी भी जो एमिट हो रही है यहाँ से, ये रेडिएशन में जो एनर्जी आ रही है, उस एनर्जी को हमने कई पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ, तो उसमें सब तरह की एनर्जी आती है, इस तरीके से डिवाइड किया हुआ, इसको बोल देते हैं कि स्पेक्ट्रम, सारी चीजें एक साथ रख दी। तो ये जो बहुत हाई एनर्जी है उसको बोलते हैं एक्सरे। आपने देखा होगा जब आपसे एक्सरे कराने जाते हैं तो डॉक्टर भी बोलता है कि पिछला एक्सरे कब हुआ था। सो ही इंश्योर दैट कहीं वो आपको ज्यादा एक्सपोज तो नहीं कर रहा रेडिएशन से, आपकी बॉडी इज एक्सपोज फॉर अ वेरी ब्रीफ पीरियड, क्योंकि ये बहुत हाई एनर्जी के एक्सरे रेज होते हैं। तो सोलर रेडिएशन में, सन से आने वाले रेडिएशन में एक्सरेज भी होते हैं। फिर आते हैं आपके यूवी रेज। बोलते अब आप भी मार्केट से जब भी ट्रैकिंग करने जाते हैं पहाड़ों में, क्या करते हो, अरे मार्केट से वो ले लेना। आप कभी लद्दाख गए होंगे तो देखा होगा, या तो आप सनस्क्रीन लगा के जाते हैं यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने के लिए। आजकल हर क्रीम में आएगा कि इट प्रोटेक्ट्स यू अगेंस्ट यूवी रेडिएशन। आपकी आंखों के चश्मे आते हैं, दे आल्सो आर यूवी प्रोटेक्शन वाले चश्मे आते हैं। तो ये डैमेज करती हैं, डैमेजिंग है, हाई एनर्जी वाली हैं। तो यूवी अल्ट्रा वायलेट बोला जाएगा इनको, अल्ट्रा वायलेट। एक्चुअली स्पेक्ट्रम को देखोगे तो वो कलर्ड है, इसलिए ये नाम आए इसके। फिर आपका विजिबल स्पेक्ट्रम आता है। इस लाइट को आप यूज कर रहे हो, आप किसी और चीज को देखने के लिए, अपने सराउंडिंग को देखने के लिए, यू सी एवरीथिंग यूजिंग दिस लाइट, दिस इज द डे लाइट। फिर उसके बाद आता है IR, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड जो है स्पेक्ट्रम यूज होता है थर्मल रेडिएशन में। तो अगर आपको नाइट विजन चाहिए तो थर्मल रेडिएशन तो रात में भी निकलते रहेंगे, तो यू यूज इन IR कैमराज। तो नाइट में अगर आपको देखना है तो थर्मल रेडिएशन यूज करते, कोई भी डिवाइस जो थर्मल रेडिएशन यूज कर सकती है। आपकी आंखें जो भगवान ने बना के दी, जो भी है आपकी एज ए ह्यूमन एवोल्यूशन के बाद, लेट्स नॉट टॉक अबाउट, ये आपकी जो आईज हैं, जो दे आर equipped टू सी विजिबल स्पेक्ट्रम। तो आप विजिबल स्पेक्ट्रम को, IR को आप नहीं देख पाते, तो नाइट विजन जो कैमरे डिवाइसेस बनाई जा सकती हैं विच कैन यूज दिस स्पेक्ट्रम टू सी द थिंग्स। तो नाइट में देखने के लिए आप IR स्पेक्ट्रा यूज करते हो। फिर उसके बाद आपका माइक्रोवेव आ जाएगा, फिर आपका रेडियो वेव आ जाएगा। तो आप देखेंगे रेडियो वेव्स जो है, माइक्रोवेव आप घर में हीट करने के लिए यूज करते ही हो, माइक्रोवेव ओवन ले आए, खाना गर्म करने के लिए हीटिंग के पर्पज होता है। और ये जो है रेडियो वेव्स कम्युनिकेशन के लिए यूज होंगी। नहीं है FM से, FM 93.5, या पता नहीं, रेडियो बजाते रहो और बहुत सारे टाइप के आएंगे ऐसे, यू विल यूज देम फॉर कम्युनिकेशन पर्पज। तो ये एनर्जी जो है कम एनर्जी वाली रेज है, ये कम्युनिकेशन के लिए यूज होंगी।
ये हीटिंग के लिए यूज होती है, ये नाइट विजन के लिए यूज होती है, ये हम और आप अपनी आंखों से चीजों को देखने के लिए यूज कर रहे हैं। यूवी रेज, ये काफी, अब इन यूवी रेज के बारे में बताएंगे। इस यूवी रेज को ही आपकी ये जो है ये पहले ही कंज्यूम हो जाती हैं अब तक पहुंचते पहुंचते, ये एक्सोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर में आयनाइजेशन में यूज हो जाती हैं। यूवी रेज जो आती हैं आपकी, इनको एब्जॉर्ब करती है आपकी ओजोन लेयर। अगर ये यूवी रेज, हाई एनर्जी रेज अगर आपकी स्किन पे पड़ते अगर इसमें, तो ये क्या करते, स्किन कैंसर कर देते, म्यूटेशन कर देते। इनफैक्ट ओजोन लेयर के बनने के बाद एटमॉस्फेयर के एवोल्यूशन में लाइफ का एवोल्यूशन, हायर लाइफ का एवोल्यूशन बहुत फास्ट हुआ। तो ओजोन लाइफ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ लाइफ इन अ वेरी सिग्निफिकेंट वे। तो ओजोन लेयर अगर हटा दी जाए तो लाइफ विल वेनिश वेरी सून, तो लाइफ को बचाना मुश्किल हो जाएगा। ये बहुत ही हार्मफुल रेज हैं और इनको स्क्रीनिंग करने का, इनको रोकने का काम ये आपकी ओजोन लेयर करती है। तो स्पेक्ट्रम के बारे में मैंने इसलिए बताया कि थोड़ा सा व्हेन आई टॉक अबाउट इसकी वेवलेंथ इतनी है, तो ये आपको ये तो पता होगा, ये 400 से 700 में नैनोमीटर की रेंज का होता है, वेवलेंथ है ये, फ्रीक्वेंसी नहीं बता रहा, फ्रीक्वेंसी अपोजिट होता है। तो कोई भी एनर्जी जो होती है उसको आप जो है एच सी अपॉन लैम्डा या एच इंटू फ्रीक्वेंसी, ये तो सब कांस्टेंट है। तो या तो एनर्जी को लैम्डा के फॉर्म में बताया जाएगा या एफ के फॉर्म में बताया जाएगा। लैम्डा को वेवलेंथ बोलते हैं। तो वेवलेंथ, अगर एनर्जी आपकी एनर्जी ज्यादा होगी तो ये चीज क्या होगी, कम होगी। मान लीजिए ये 10⁻⁻12 होता तो एनर्जी 10⁻+12 हो जाएगी, क्योंकि ये नीचे है डिनोमिनेटर में। और यह फ्रीक्वेंसी में जो है आपको ज्यादा बोलूं, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं। तो जब हम इनकी बात करेंगे तो हाँ, यहाँ फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, और यहाँ बात करेंगे तो हम वेवलेंथ की बात करेंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो जाएगी। ये मेगा हर्ट्स में यही होती है, फिर ये है गीगा हर्ट्स से लेकर, और फिर जो है बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो फिर इतना हायर, तो फ्रीक्वेंसी इधर की तरफ बढ़ेगी और वेवलेंथ इधर की तरफ घटती जाएगी। तो ये कुछ चीजें फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ हो सकता है आपको परेशान करें। जिसको परेशान कर रही हैं अभी भी समझ में नहीं आई है तो आप छोड़ सकते हैं, कोई दिल में कोई वो रखने की आवश्यकता नहीं है। 50 बार आएंगे जब तक आप पढ़ाई करोगे, जब तक आपका प्रीलिम्स आएगा, यू विल काउंटर देम 50 टाइम्स। पहली बार में समझ में आना जरूरी नहीं है, वैसे तो कुछ ऐसी बड़ी बात है नहीं। तो आप ये समझ लें कि सन से जो रे एनर्जी आ रही है उसमें सभी तरह की एनर्जी है, सभी तरह की एनर्जी का डिफरेंट डिफरेंट यूज होता है, और सभी तरह की एनर्जी जो है, अब उसके क्या क्या रोल है। एक्स रे बड़े हार्मफुल होते हैं और हम इनको वैसे यूज भी करते हैं, यूवीज भी आपके हार्मफुल हैं। तो यूवी रेज को रोकने का काम, एक्स रे रेज जो है वह आपके ऊपर ही खत्म हो जाते हैं। देन आपके यूवी रेज जो पोटेंशियली डेंजरस होते हैं वो होते हैं, और इनको रोकने का काम करती है आपकी दिस ओजोन लेयर। ये जो ओजोन लेयर है आपकी, तो ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है, हम बोलते हैं कि ये आपका, देखिए 12 से 18 तक ये चलता है आपका। कुछ किताबें लिखेंगी 18 से लेकर 12 से 18 से लेकर आपका 30 किलोमीटर तक जो है आपका, वो बताएंगी समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर, और उसके ऊपर बता देंगी वो ओजोनोस्फेयर। तो डिपेंड करता है, 30 से 50 को वो बोल देंगे, लेकिन ये ट्रोपोस्फेयर से लेकर 50 किलोमीटर तक की दूरी का ये जो स्पेस है अराउंड अर्थ, इट इज ऑक्यूपाइड दिस ओजोन लेयर। तो ये 35-40 किलोमीटर की डेप्थ पे जो है सबसे ज्यादा क्वांटिटी में है। और ओजोन लेयर की थिकनेस को भी आप मेजर करते हो तो थिकनेस को डॉप्सन यूनिट में करते हैं। अब कोई बोलेगा ओजोन लेयर में छेद हो गया है, होल हो गया है, तो भाई होल कैसे हो सकता है इस लेयर में? तो कहने का मतलब कहीं पे लेयर आपकी पतली हो गई है, इतना सा रह गया, तो इससे इस एरिया में क्या होगा, ये जो है यूवी रेडिएशन ज्यादा रिसीव होंगे, तो वी विल फील लाइक वहां से कोई, जैसे कि अगर कोई होल हो गया हो तो जैसे पानी कहीं से रोका होल होगा तो पानी टपकने लगेगा। उसी तरीके से यूवी रे जितनी स्क्रीन होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही, ज्यादा आ रही, ज्यादा आ रही। दैट मींस समथिंग, सम ओपनिंग हैव कम अप। ओपनिंग नहीं है एक्चुअली, आपकी उस एरिया के अंदर ओजोन लेयर की थिकनेस हो गई है कम, राइट। अच्छा, अब इस ओजोन को भी मैंने ए बी सी 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। ओजोन को भी मैंने ए बी सी 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो ए बी सी 3 पार्ट बस कुछ नहीं है, आप ये समझ लो, इनमें ए जो है आपका सबसे कम ऊर्जा वाली ओजोन की किरण है, बी जो है मिडिल ऊर्जा वाली है, और सी एक्सट्रीमली डेंजरस है। सी जो है एक्सट्रीमली डेंजरस,
तो एक्सट्रीमली डेंजरस जो ओजोन की किरणें हैं उनको मैंने सी नाम दिया है, ठीक है। तो ए बी सी कुछ नहीं है, बस इतना ही, इनमें बस इतना सा डिफरेंस है कि सी इज एक्सट्रीमली डेंजरस। तो वो ये जो स्पेक्ट्रम था आपका, ये सनलाइट का जो स्पेक्ट्रम था, ये 400 से लेकर 700 तक तो विजिबल लाइट का था, 700 से आगे आईआर हो गया, 700 100 से लेकर 400 आपका ये है विजिबल लाइट, ठीक है। तो 100 से लेकर ये जो ए वाला, ये जो सी बोला है मैंने, ये जो डेंजरस है सबसे ज्यादा, 100 से लेकर 280 तक ये हाई एनर्जी है। यहाँ पे इधर की तरफ एनर्जी हाई होती है, उधर की तरफ एनर्जी कम होती जाएगी। दिस इज एक्सट्रीमली डेंजरस यूवीसी एंड इट इज कंप्लीटली 100% स्टॉप्ड, 100% स्टॉप्ड बाय योर ओजोन लेयर। देन 280 से लेकर 315 की एक बैंड बना ली मैंने, और इसको मैं बोलता हूँ बी। ये 95% स्टॉप होती है आपकी, ये 95% स्टॉप होती है आपकी, 95% स्टॉप हो जाएगी, और ये 5% स्टिल रीचेस, ये 5% फिर भी अर्थ पे पहुंचती है। और ये 315 से 400 के बीच वाली ये जो यूवीए है, ये 100% आ जाती है यहाँ पे अर्थ पे, और ये कोई हार्मफुल नहीं है, नो हार्म। लेकिन ये यूवीवी है ना, यूवीबी, ये बड़े काम की भी है, ऐसा नहीं है, डेंजरस तो है, लेकिन ये जो 5% आ रहा है, ये 5% इज वेरी यूजफुल। इसी से विटामिन डी सिंथेसिस होती है। विटामिन डी का सिंथेसिस जो होता है, विटामिन डी का सिंथेसिस जो होता है, वो ये यूवीबी करती है आपकी। तो आपको जरूरी नहीं है कि इनका वेवलेंथ याद रखो, इनका ये जो वेवलेंथ याद रखना है आपको। और ये नैनोमीटर में 100 से 400 से 700 नैनोमीटर, 100 से 280, 280 से, तो 280 से लेकर 280 से लेकर, अच्छा, ये 280 से लेकर 315 नैनोमीटर साइज की, और या वेवलेंथ की ये जो किरणें हैं, ये जो रेज हैं सन की, इनको बोलते हो आप अल्ट्रावायलेट बी टाइप रेज। अब ये 95% तो स्टॉप हो जाती हैं ओजोन लेयर के द्वारा, ओजोन लेयर के द्वारा, और 5% रीचेस द अर्थ। तो इससे ओवरऑल एक्सपोजर इज अ प्रॉब्लम, लेकिन दिस इज यूज फॉर विटामिन डी सिंथेसिस। तो भाई विटामिन डी के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, विटामिन डी बीमारी क्या है, व्हाट इज दिस विटामिन डी। ऑलरेडी आप सब लोग विटामिन के बारे में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो मैं बस जो आपने बचपन से पढ़ा है उसको एक बार हल्का सा रिवाइज करा देता हूँ कि विटामिन डी जो है आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत जरूरी है। कैल्शियम, फास्फोरस और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन से क्या बना होता है, बॉडी का स्केलेटन। जिनको नहीं समझ में आ रहा है, स्केलेटन मतलब आपकी बॉडी का ढांचा। अगर मैं आपकी बॉडी से फ्लैश हटा दूं तो क्या बचेगा, ढांचा बचेगा, नहीं बचेगा एक तरीके से। तो आपकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, बोन्स जितनी भी हैं ऊपर से नीचे तक, हाथों से पैरों से लेकर खोपड़ी तक की, वो सब किससे बनी है, कैल्शियम, फास्फोरस और बाकी मिनरल से बनी है। तो ये जो मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर होता है, ब्लड में से जो एब्जॉर्प्शन होता है, ये विटामिन डी करती है। विटामिन डी का इसमें मेजर रोल है, विटामिन डी का मेजर रोल है। तो आपने देखा होगा जिनमें विटामिन डी की कमी होती है तो उनका क्या हो जाता है, उनके हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, हाथ पैर टेढ़े हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, यानी उनको रिकेट्स की बीमारी हो जाती है। रिकेट्स में क्या होता है, उनके हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं। लेकिन आजकल ये बीमारी वो तो अगर बचपन में ही कमी हो गई, तो इस उसमें खाने की आवश्यकता नहीं थी। विटामिन डी आपको भोजन से भी मिलती है, लेकिन भोजन में क्या है, या तो प्लांट खाते हो या एनिमल फूड खाते हो। एनिमल फूड में भी मछलियां जो होती हैं उन्हीं में होता है, पिग फैट एंड जो होते हैं आपके फिश, फिश का कॉड लिवर ऑयल वगैरह फिश वगैरह में मिलता है। तो दे आर आल्सो एनिमल, तो उनकी स्किन में भी बनता है ये विटामिन डी, आप कंज्यूम करते हो तो आपको मिल जाता है। और बाकी कुछ प्लांट्स में मिलता है जैसे मशरूम वगैरह में, लेकिन दोनों का विटामिन अलग अलग है,
ठीक है, तो वहां से मिलता है, लेकिन आपको केवल कुछ नहीं करना है, धूप लगानी है, और वो भी नहीं लगा पाए, उस वजह से हो गया रिकेट्स। रिकेट्स की वजह से आपके बोन्स हो जाते हैं टेढ़े, हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, उसी को बोलते हैं रिकेट्स। तो इसलिए विटामिन डी को क्या बोला जाता है? सनसाइन विटामिन। ये कोई पैसे वाला हो गरीब हो सबके पास है, लेकिन आजकल सब में विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी जो आपकी बॉडी के स्केलेटन को बनाती है, सपोज करो विटामिन डी की क्रोनिक डेफिशिएंसी होने लगी आप में, अब आप बड़े हो गए होगे, हाथ पैर तो टेढ़े नहीं होंगे लेकिन फ्रेजाइल हो जाएंगे, छोटी सी टक्कर मारी किसी ने, हाथ पैर टूटने लग जाएंगे, आपकी हड्डियां जो में ऑस्टियोपोरोसिस होने लग जाएगा, मतलब आपकी हड्डियां कमजोर होने लग जाएंगी, टूटने लग जाएंगी, और एक्चुअली कई और सारी आपकी इम्यूनिटी भी कम होने लगती है। अभी जैसे कोरोना के टाइम में लॉट मेनी पीपल आर सेइंग दैट के विटामिन डी अगर आपकी सही है तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, तो धूप लो, सभी लोग धूप ले रहे हैं। फिर ये है कि कितनी देर धूप में बैठे, कब धूप में बैठे। विटामिन डी, तो विटामिन डी का जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, कई बार साइंटिफिक नेम और ये सारी चीजें पूछ ली जाती हैं, और ये सनसाइन विटामिन है तो यू शुड नो, और बाकी अपने घर परिवार में लोगों को भी अवेयर करो। तैयारी करने का मतलब ये थोड़ी एग्जाम में टॉप करना है, आपकी नॉलेज से सोसाइटी शुड बेनिफिट। तो आपको मैंने बताया यूवी की अल्ट्रावायलेट ए किरणें जो है 100% अर्थ की सरफेस पे पहुंचती हैं, लेकिन इनका कोई यूज नहीं है, कोई खतरा नहीं है इनका, मतलब यूज नहीं मतलब खतरा नहीं है इनका कोई, दे आर नॉट डेंजरस एट ऑल। लेकिन अल्ट्रावायलेट की जो बी है इसका 5% पहुंचता है, लेकिन ये विटामिन डी सिंथेसिस में काम आता है, विटामिन डी सिंथेसिस में आता है। और ये अल्ट्रावायलेट का जो सी वाला जो पोर्शन है 100 से लेकर 280 नैनोमीटर, ये बड़ा डेंजरस होता है, इसको 100% आपकी ओजोन रोक लेती है। अगर ये आ जाता तो इनफैक्ट एवोल्यूशन ऑफ लाइफ अर्थ पे नहीं हो पाता जिस रेट से ये हुआ है, तो इट वुड हैव स्टॉप्ड इट लाइक एनीथिंग। तो आपकी ओजोन लेयर लाइफ सेविंग लेयर है, लाइफ स्क्रीन सेविंग लेयर है, लाइफ गिविंग लेयर है, एंड इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन एवोल्यूशन ऑफ। तुम आप ओजोन लेयर के बनने के बाद जब रेट ऑफ एवोल्यूशन देखोगे तो यू विल फाइंड द रेट ऑफ एवोल्यूशन इज वेरी फास्ट। सो ओजोन लेयर शुड बी देयर, दैट्स व्हाई ओजोन को प्रोटेक्ट करने के लिए आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया। 16 सितंबर को आप मनाते भी ओजोन डे, 16 सितंबर को हर साल मनाया जाता है, ओजोन दिवस मनाया जाता है बताने के लिए वर्ल्ड को। और बाकी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जिनको ओडीएस बोलते हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, और उनको ऑलरेडी फेज आउट किया जा रहा है। तो जब ओजोन के बारे में बात होगी तो वी विल टॉक, जब एनवायरमेंटल सेक्शन में वी विल टेक अप देम अगेन, बट आई एम जस्ट टॉकिंग। अगर मैं ज्यादा साइंस पढ़ाने लगा तो फिर ये चैप्टर ज्योग्राफी से साइंस का हो जाएगा। सो यूवीसी, तो ये एक्चुअली काफी कंफ्यूजन होता है, अल्ट्रावायलेट बी क्या है, ए क्या है, सी क्या है। ए को भूल जाओ, कोई काम की नहीं है, भूल जाओ। सी आपके पास आ ही नहीं रही है तो उसे भूल जाओ। तो जब आप यूवी की बात करते हो जो अर्थ पे आ रही है वो 5% आ रही है, 95% रुक रही है, तो वो यूवी बी आ रही है आपकी। तो अल्ट्रावायलेट जो है, तो आपकी एक्चुअली विटामिन डी का सिंथेसिस होता क्या है, आपकी जो स्किन होती है, स्किन के अंदर, आपकी स्किन के अंदर एक कोलेस्ट्रॉल होता है, इसको बोलते हैं 7 हाइड्रोक्सी। तो आप हाइड्रोक्सी हटा सकते हैं, वो भी ये केमिस्ट्री में जिन जिन कंपाउंड में OH ग्रुप लगे होते हैं उनको हाइड्रोक्सी बोलते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल होता है। तो आपकी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है, अगर इसमें यूवी बी अल्ट्रावायलेट बी टाइप की जो रेज हैं जिनका वेवलेंथ जो है 280 से 315 नैनोमीटर के बीच में है, ये वाली रेज जब आपकी स्किन को टकराती हैं, आपकी बॉडी स्किन को टकराती हैं, तो ये क्या करती हैं आपकी बॉडी स्किन के अंदर, ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है इसको ये ट्रांसफॉर्म करती हैं किसी प्री विटामिन डी में, क्योंकि बॉडी की आप जो हीट होती है उसको आइसो चेंज कर देती है, तो आपको मिलता है विटामिन D3। तो ये कह लीजिए कि आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसको अल्ट्रावायलेट बी टाइप की जो रेज है, दे ट्रांसफॉर्म दैट कोलेस्ट्रॉल इनटू विटामिन D3। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कोलकैल्सिफेरॉल। तो विटामिन डी का जो साइंटिफिक नेम होता है कैल्सीफेरॉल होता है। कई बार एग्जाम पूछ लेता है तो इसलिए मैं बता दिया हूँ आपको। वैसे थोड़ा सा जिनको ये सबको पता ही होगा, क्योंकि ये तो सभी लोग रटते ही हैं, विटामिन डी की वजह से कौन सी बीमारी होती है,
एक की वजह से दिखना बंद हो जाता है, रतौंधी हो जाती है, मतलब कम दिखने लगता है, रात में नहीं दिखेगा बिल्कुल भी। और उसी तरीके बी की वजह से बेरी बेरी हो गया, सी की वजह से स्कर्वी हो गया, डी की वजह से रिकेट्स हो गया। तो क्योंकि ये डी का इंपॉर्टेंस था इसलिए आई एम नॉट टीचिंग द साइंस। तो कैल्सीफेरॉल बोलते हैं इस विटामिन डी को। तो आपकी स्किन पे ये यूवी बी रेज जो कि इस एनर्जी की होती हैं, इस वेवलेंथ की होती हैं, आपको वेवलेंथ याद करने की जरूरत नहीं है। जब आप अल्ट्रावायलेट बी लिख देते हैं आपका काम हो गया, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट वी, क्योंकि बहुत सारी केमिकल रिएक्शन स्पेसिफिक रिएक्शंस होती हैं, वो एक पर्टिकुलर एनर्जी के रेडिएशन से ही होती हैं, तो ये उस टाइप की रिएक्शन है। तो आपकी स्किन के अंदर मिलने वाला कोलेस्ट्रॉल जिसपे विटामिन अल्ट्रावायलेट बी रेज पड़ती हैं, उसके बाद ये विटामिन D3 में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। विटामिन D3 को बाद में ब्लड के द्वारा लीवर में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और लीवर के अंदर ये जो है विटामिन डी में कन्वर्ट होता है। तो कहने का मतलब आपकी बॉडी के अंदर जो विटामिन डी का फॉर्मेशन हो रहा है वो सनलाइट से होता है, और उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल को विटामिन D3 में कन्वर्ट किया जाता है। तो चाहे आप विटामिन D3 अगर फूड से लेना चाहते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे आज फूड सप्लीमेंट मिलते हैं मार्केट में, उन पर लिखा था फोर्टिफाइड विद, फोर्टिफाइड का मतलब इनरिच्ड, मतलब मिला दिया गया, बढ़ा दी गई उसकी क्वांटिटी विद विटामिन डी। क्योंकि आजकल हर किसी में विटामिन डी की कमी है। सरकार बोल रही है कि भाई लोगों को हम बोलें कि आप धूप ले लो तो वो मानेंगे तो नहीं, तो क्या करते हैं, उनसे 2 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, उनको फोर्टिफाइड देते हैं, क्योंकि उन्हें मनी की भाषा समझ में आती है। और फिर कोई उस पर लिखा रहेगा स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य बढ़िया है, तो आप 2 रुपए एक्स्ट्रा देकर फोर्टिफाइड मिल्क लेके आएंगे या फोर्टिफाइड फूड खाएंगे। तो फूड जो होता है वो 2 तरीके का है, या तो एनिमल से मिलेगा या प्लांट से मिलेगा। तो एनिमल से मिलने वाला जो फिशेस जो होती हैं, जो लोग खाते हैं, उनको मिल जाता है। तो यहाँ पे विटामिन D3 मिलता है, और यहाँ पे विटामिन D2 मिलता है, ठीक है। तो विटामिन D2 D3 के साइंटिफिक नेम आपको जानने की जरूरत नहीं है। ये अर्गो कैल्सीफेरोल होता है, ये कोल कैल्सीफेरॉल होता है। बेसिकली कैल्सीफेरॉल आपका विटामिन डी है। D2 D3 दोनों ही ट्रांसपोर्ट करके ब्लड के द्वारा लीवर जाते हैं, वहां पे विटामिन डी बनता है इनसे। D3 इज मोर इफेक्टिव, जो आपकी स्किन में भी D3 बनता है, एनिमल स्किन में भी D3 ही बनेगा, प्लांट में D2 बनता है। यू कैन टेक दैट आल्सो, बट नॉट ऑल द प्लांट्स फूड आर हैविंग, मशरूम वगैरह जो होते हैं दे हैव दिस, स्पिनाच मशरूम एंड ऑल, इनमें ये होता है। लेकिन बेस्ट सोर्स जो है विटामिन डी का फोर्टिफाइड फूड नहीं है, बेस्ट सोर्स है आप डेली हाफ एन आवर देखिए। हाफ एन आवर का जो आपकी स्किन का कलर क्या है, आपकी स्किन में मेलामाइन कंटेंट ज्यादा होगा तो स्किन डार्क होगी, तो आपकी बॉडी को विटामिन डी बनाने में टाइम लगेगा। क्योंकि ओवर एक्सपोजर से आपकी स्किन को डैमेज ना हो, तो ऑटोमेटिकली एवोल्यूशन के साथ उसमें मेलामाइन कंटेंट बढ़ गया है। जो हायर लेटीट्यूड्स में रहते हैं, जहाँ डायरेक्ट सनलाइट पहुंचती नहीं है, तो यूएस कनाडा जैसी कंट्रीज में हर कोई वहां पे इनफैक्ट काफी समय के लिए विटामिन डी से वंचित रहता है। तो दे नीड टू ईट विटामिन डी, अदरवाइज दे विल बी सब्जेक्टेड टू सो मेनी प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं। लेकिन आज की डेट में सब किसी को हेल्थ इश्यूज हो रहा है। विटामिन डी सनलाइट से आ रही है, सनलाइट में यूवी लाइट जो है, तो बेस्ट टाइम जो होता है वो एक्चुअली जब लाइट आपकी सीधी पड़ रही हो, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में आ रही हो, सुबह के 10 बजे से दिन के 1 बजे तक का टाइम जो है बेस्ट है। आप इसमें 30 मिनट के लिए अपने परिवार के साथ धूप में बैठें अपनी। अब कई कई बार कल्चरल रीजन की वजह से महिलाओं को स्पेशली पूरा बॉडी को ऊपर से नीचे तक ढक दिया जाता है, तो विटामिन डी नहीं मिलेगी। या फिर आप आधे घंटे के लिए भी निकले तो पूरा सनस्क्रीन लगा के चले गए, तो फिर आपकी बॉडी जो है, जो सनलाइट होगी वो रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी, तो फिर आपकी विटामिन डी। तो सनस्क्रीन तभी लगाएं जब बहुत लंबे समय के लिए कहीं पे जा रहे हैं, अदरवाइज लेट योर बॉडी हैव सम विटामिन डी। तो सनसाइन विटामिन अपनी बॉडी को दो, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट ओजोन लेयर, दिस वाज अबाउट दिस लाइफ सेविंग लेयर। ओजोन ना होती तो इस पे जीवन बड़ा स्लोली ग्रो करता और इस लाइफ तक पहुंच पाता नहीं, बहुत डिफिकल्ट उसे नहीं पहुंचता। और अगर अभी ओजोन लेयर नहीं होगी तो देन इट विल वाइप आउट अ वेरी लार्ज सेक्शन ऑफ द लाइफ फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। सो अब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लेयर। तो ओजोन लेयर हो चुकी है आपकी, ठीक है। ओजोन लेयर इज पार्ट ऑफ दिस स्ट्रेटोस्फीयर ओनली, स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है, इसी का हिस्सा है आपकी ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर या स्ट्रेटोस्फीयर को का जो पार्ट है, आप इसको 30 से
30 से 50 किलोमीटर की डिस्टेंस वाले लेयर को आप आसानी से इसको बोलना चाहें तो आप ओजोन लेयर बोल सकते हैं, ओजोन लेयर बोल सकते हैं। लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर ये क्या होता है? अच्छा, अब दूसरी बात है, यहाँ पे तो आपने बताया कि ठीक है ऊपर जाते जाते टेम्परेचर कम होगा, लेकिन इसमें क्या होता है? तो बेसिकली जस्ट टेल यू अबाउट, आपको केमिस्ट्री नहीं जानना है बट जस्ट बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। जब आपकी ऑक्सीजन बनी थी तो O2 होती है, यानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन इस तरीके से होती है, दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं आपस में बॉन्ड से। जब यूवी रेज आती हैं, ये यूवी सी एंड बी जो रेज हैं ये क्या करती हैं? इसको ब्रेक कर देती है, तो ये टूट जाता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन। जब ये अकेला रहता है तो ये बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, एक्सट्रीम एक्टिव है रेडिकल्स, एंड रेडिकल्स आर मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, केमिकल एलिमेंट्स होते हैं, या आपके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ये आपके मोस्ट रिएक्टिव केमिकल कंपोनेंट्स हैं एक तरीके से। तो ये जो O है ये सिंगल है और इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए कैसे भी, तो ये जाके किसी से भी कंबाइन कर जाएगा, तो ये जो बची हुई O2 है उससे कंबाइन और O3 बना लेता है, इसमें हीट रिलीज होती है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा, इस लेयर पे उनका फॉर्मेशन हुआ है, वहां पे टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये जो हीट ली थी इसने एक रिएक्शन करा दी और उसमें, और ये आपकी ओजोन भी ब्रेक डाउन होती है O2 and O में, पर ये इसका रेट स्लो होता है, ठीक है। तो इसको भी यूवी रेज चाहिए, तो यूवी रेज इनफैक्ट बनाने में कंज्यूम हो रही है, तोड़ने में कंज्यूम हो रही है, वो आप जो है सेल्फ सस्टेनेबल है ऊपर में, और ये जो है इस तरीके से आपकी यूवी कंज्यूम होती रहेगी, आपके नीचे तक नहीं आएगी, और यहाँ हीट निकलती रहेगी। इस वजह से इस लेयर का तापमान यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर में यहाँ पे 12 से 30 किलोमीटर तक तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो क्योंकि इसमें जो आपकी इसमें जो आपका टेम्परेचर घटना चाहिए, तो जो इसमें टेम्परेचर रिड्यूस होना चाहिए आपका, जस्ट अ मिनट, तो जैसे कि ये मान लीजिए ये स्ट्रेटोस्फेयर वाली लेयर है, ये 30 किलोमीटर तक का है, ये 12 से 18 किलोमीटर के नीचे वाली लेयर थी, ऊपर में 30 किलोमीटर हो गया, और ये है 50 किलोमीटर, 30 to 50। तो यहाँ पे क्या होता है कि 5% ओजोन यहाँ है और 95% ओजोन यहाँ है। तो बेसिकली टेम्परेचर यहाँ ऊपर जाने पर डेफिनेटली कम होना चाहिए, लेकिन 5% है तो उसकी वजह से ग्रो होता है, तो टेम्परेचर कम ना होके इनफैक्ट टेम्परेचर कांस्टेंट रह जाता है। और यहाँ पे ओजोन में आपने देखा ही था, यहाँ पे क्या होता है, ये हीट रिलीज हो रही है, तो सॉरी ओजोन जब ब्रेक होती है ये सनलाइट से, तो ये O2 प्लस O बनाती है, प्लस हीट निकलती है, इसमें निकलती है, ठीक है, इसमें हीट निकलती है। तो इस वजह से ये क्या है, टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ेगा, इस लेयर का टेम्परेचर, इसलिए इस लेयर में टेम्परेचर का राइज दिखाया था, उससे पहले टेम्परेचर डिक्रीज दिखाया था। ये ट्रोपोस्फेयर में डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर को इस तरीके से दूं, ये मान लो टेम्परेचर है, तो इधर जाने पे बढ़ रहा है और इधर जाने पे घट रहा हो, तो ये घटते घटते समथिंग हुआ, फिर यहाँ पे ये कांस्टेंट हुआ, फिर उसके बाद इंक्रीज होने लगा। तो ये इस तरीके से आपके टेम्परेचर का वेरिएशन होगा इसमें, कारण बीइंग के O3 जब टूटती है यूवी रेज से, अल्ट्रावायलेट रेज जब O3 को ब्रेक करते हैं, O2 प्लस O बनाते हैं, तो इस प्रोसेस में हीट निकलता है। और तो जो पहले बताया तो O2 ब्रेकिंग उसमें हीट नहीं निकलता था, सॉरी फॉर दैट मिस्टेक एंड छोटा सा करेक्शन था। अच्छा, तो ट्रोपोस्फेयर की लेयर हो गई आपकी, वी विल डिस्कस अबाउट दैट, बट यही मान लो बस इसका 12 से 18 किलोमीटर की लेयर होती है जी, एंड यू विल बी टॉकिंग अबाउट इट इन डिटेल। ओके, तो देन यू हैव दिस स्ट्रेटोस्फेयर के बाद मीजोस्फेयर है आपको। तो मीजोस्फेयर में मीटेरोइड्स जनरली जितने भी आएंगे यहीं पे बर्न हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन कॉज्ड बाय द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में एंटर करते समय दे आर सब्जेक्टेड टू इमेंस फ्रिक्शन, सो इमेंस फ्रिक्शन की वजह से दे गेट बर्न ऑफ इन दिस लेयर। और ये मीजो
स्फीयर वाली लेयर में देयर इज नथिंग मच इज हैपनिंग, सो what will happen, this temperature will go down again here, temperature will go down। तो टेम्परेचर यहाँ डिक्रीज होना चाहिए जिस तरीके से, तो एकदम आइडियली टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। अब उसके बाद मीजोस्फीयर को जैसे ही क्रॉस करते हैं, इनफैक्ट ये जब एंड होने लगता है, इनफैक्ट वहां से लेकर थर्मोस्फीयर और इसके थोड़े से ऊपर तक, ये जो स्फीयर है यहाँ पे जो ये जो रीजन ऑफ स्पेस है, ये रीजन ऑफ स्पेस है, ये दिस रीजन ऑफ स्पेस इज बेसिकली अ चार्ज लेयर। यहाँ पे आपके बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं, so many charge particles are here, and because of these charge particles इनको हम बोलते हैं आयनोस्फीयर। तो आयनिक लेयर है, लेकिन इट इज मेजरली पार्ट ऑफ थर्मोस्फीयर, और इसमें आपको थर्मोस्फीयर वाले जो पार्ट है ये 80 किलोमीटर से लेकर 800-700 किलोमीटर तक, कोई 600 किलोमीटर तक बताएगा आपको, दैट काइंड ऑफ लेयर है। तो बेसिकली व्हेन यू टॉक अबाउट दिस एटमॉस्फेयर के बारे में जब बात करते हैं, तो पहली लेयर 12 से 18 किलोमीटर की हो गई आपकी ट्रोपोस्फेयर की। ये सबसे ज्यादा टर्बुलेंट लेयर होगी और इसी में हम बाकी सारी स्टडी करेंगे। देन 12 से 18 से 30 किलोमीटर तक की लेयर, अगर आप फर्दर, क्योंकि एनसीईआरटी ने ऐसा दिखा रखा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर बोल सकते हैं। उसके ऊपर 50 किलोमीटर तक जाते हैं आप, तो इसको बोलते हैं ओजोनोस्फेयर। वैसे इस पूरे को ही स्ट्रेटो बोल सकते हैं, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन कहाँ एनसीईआरटी में आप कंफ्यूज ना हो कि सर वहां तो ऐसे दिया हुआ है। और उसके ऊपर 80 किलोमीटर तक आपकी लेयर है मीजो। तो मीजो, ओजोन, स्ट्रेटो एंड, तो इसको तो मोस्ट से याद रख लेते हैं लोग, MOST अंग्रेजी का वर्ड है मोस्ट, तो उससे याद हो जाता है लेयर का ऑर्डर भी, अगर आपको याद रखना, हालांकि यू आर रीडिंग इट इन डिटेल। तो ट्रोपोस्फेयर में जाने में आपने देखा तापमान कम होता गया था, टेम्परेचर वाज रिड्यूसिंग, देन यहाँ कांस्टेंट रहा, यहाँ इंक्रीज हुआ, फिर ये डिक्रीज होगा यहाँ पे, देन इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग अगेन। तो ये इसके बाद मेसोस्फीयर के बाद आता है आपका थर्मो। तो ये हीटेड है बेसिकली। तो यहाँ पे जो बेसिकली यहाँ से शुरू होता है और थर्मो के बियॉन्ड होता है आपका, ये इसको 600 किलोमीटर तक मान लो आप, 600 to 800 तक है, तो मान लो 800 ही मान ले, तो कोई 1000 तक भी लिख सकता है। तो एक क्लियर कट डेफिनेशन तो नहीं हो सकती कि यहीं पे कोई एक लाइन तो है नहीं है, ठीक है। और बेसिकली क्या होता है, ट्रॉपिक्स पे इसका और बाकी जगहों पे अलग अलग वेरिएशंस होते हैं, लेकिन इतनी हाइट पे नहीं होते हैं बेसिकली। सो ये जो है यहाँ से लेकर ये वाला पोर्शन, ये इतना पोर्शन जो है ये आपका आयनिक फॉर्म में है। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ आयनिक फॉर्म, ये आयनिक फॉर्म में है। तो ये प्लाज्मिक स्टेट है, इसका प्लाज्मिक स्टेट है। तो ये आयनिक फॉर्म में होने से क्या अंतर आ रहा है बेसिकली, ये आयनिक फॉर्म में है, आयनिक फॉर्म। तो गैसेस इन आयनिक फॉर्म्स आर बेसिकली कॉल्ड प्लाज्मा। ये गैसेस जब आपकी आयनाइज्ड होती हैं उनको हम प्लाज्मा बोलते हैं। we won't continue for long, just hold on for 10 more minutes and the lecture will be over, and then new topic will start tomorrow. So ये प्लाज्मिक स्टेट जो है आपकी, प्लाज्मिक स्टेट जो है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, कम्युनिकेशन में बेसिकली यूज होती है। बड़ा तो क्या है, तो ये जो आपकी आयनोस्फीयर भी बोलते हैं, आप किताबों में पढ़ोगे आयनोस्फीयर। तो आयनोस्फीयर आपका एक्सटेंड कर जाएगा आपका यहाँ से कोई 60 किलोमीटर से लेकर 600 तक चला जाएगा, 600 से 800। तो ये जो आयनोस्फीयर वाली लेयर है ये चार्ज पार्टिकल्स की लेयर है, और ऑफ कोर्स आपने देखा है कि यहाँ पे गैसेस तो बहुत दूर दूर होंगे, तो ये चार्ज अपने आप में रिकम्बाइंड नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड और उसका जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है चार्ज पार्टिकल उसमें से निकल जाएगा, वो पॉजिटिव होगा, तो आपस में रिकम्बाइंड भी हो सकते हैं, लेकिन इतने दूर दूर हैं तो दे कैन फ्लोट इंडिपेंडेंट। तो ये बहुत ज्यादा चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव जो है बहुत ज्यादा भरे पड़े हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट दिस लेयर इज एक्चुअली, जब इस लेयर के बारे में पता चला तो आप देखेंगे 90s 1920 ऑनवर्ड्स से लेकर 1960s 70s तक
ये जो है कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज्यादा यूज होती थी। रेडियो कम्युनिकेशन जितने भी होते थे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे तो बहुत यूज हुआ था रेडियो कम्युनिकेशन। आज हम मूव ऑन कर गए साइट सैटेलाइट कम्युनिकेशन के ऊपर। जब तक सैटेलाइट कम्युनिकेशन नहीं आए थे तब तक रेडियो कम्युनिकेशन के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यू यूज टू डिपेंड अपॉन आयनोस्फीयर, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए। तो ये जो आयनोस्फीयर वाली जो लेयर है, आयनोस्फीयर की जो लेयर है, दिस चार्ज पार्टिकल्स का जो एक लेयर है, आपका रीजन है अराउंड द स्पेस, अराउंड द अर्थ। तो अर्थ की डिस्टेंस है आप 60 किलोमीटर से लेकर 800 किलोमीटर तक की, या 80 से 800 किलोमीटर, या 60 से 600 किलोमीटर जो का जो रीजन है, ये बटा हुआ है आपका। इसमें बहुत ज्यादा चार्ज पार्टिकल्स हैं, इसलिए ये आयनिक लेयर है। दिस आयनिक लेयर इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन। ठीक है, तो रेडियो वेव्स जो कि आपकी जिनको कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है, ये लेयर जो है यूज टू हेल्प इन दैट कम्युनिकेशन। ओके, तो कैसे हेल्प करती थी और इस लेयर को किस तरीके से डिवाइड कर रखा है, वो थोड़ा सा डराने के लिए लोग बोल देते हैं डी लेयर, एफ लेयर। तो मैं आपको बता देता हूँ कि डी लेयर, एफ लेयर क्या है। ठीक है, सो दैट कोई आपसे बोलेगा नहीं कि एप्लीटॉन लेयर क्या है, कि कैनली हैवीसाइड लेयर क्या है। तो बस वो वर्ड है और कुछ नहीं है, साइंटिस्ट के नाम है एप्लीटॉन को। तो एडवर्ड एप्लीटॉन ने इनफैक्ट वो नोबेल प्राइज भी मिला था इसके लिए। तो तो ये जो आपका आयनोस्फीयर वाली जो लेयर है, आयनोस्फीयर वाली लेयर, अच्छा मैंने फोटो बना ही रखा था, उसी को देखते हैं। तो जो आयनोस्फीयर वाली लेयर है, इसको आपने ई और एफ लेयर में डिवाइड कर रखा है। ये ई लेयर हो गई, ये एफ लेयर हो गई। तो जो ई एंड एफ लेयर्स हैं आपकी, तो आपने देखा, देखिए ये नाइट वाला सीन है और ये डे का है। तो डे में आपकी एफ लेयर दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, F1 एंड F2। और ये जो ई लेयर है उसके नीचे एक लेयर और अपीयर होने लग जाती है, डी लेयर। और रात में ये डी लेयर काम गायब हो जाती है। तो डी, ई और एफ लेयर तो हम बोलते हैं, लेकिन डी जो लेयर है आपकी, दैट इज विजिबल ओनली ड्यूरिंग द डे। डी लेयर इज ओनली विजिबल ड्यूरिंग द डे। और फिर उसके बाद ई एंड एफ नाम दे दिए। एफ दिन में दो में टूट जाती है, F1 एंड F2। तो अभी क्या है कि आप देखिए ऊपर से स्पेस से क्या आ रहा है, स्पेस से आपके सोलर, मैंने बताया था सोलर विंड्स आते हैं। सोलर विंड्स क्या है कि चार्ज पार्टिकल्स। दूसरा क्या आता है स्पेस से, आपको कॉस्मिक रेडिएशंस आते हैं। भाई ऐसा ही नहीं है कि सन से ही जो रेडिएशंस आ रहे हैं, पूरे को मतलब सन के अलावा और स्टार से आएंगे और गैलेक्सी से जो रेडिएशन अर्थ की तरफ पहुंच रहे हैं, उनको बोलते हैं कॉस्मिक रेडिएशन। सन से जो आ रहे हैं उनको बोलते हैं सोलर रेडिएशन। और सोलर विंड्स भी आती हैं वहां से, रेडिएशन के अलावा विंड्स चलती हैं सोलर रेडिएशन, सोलर विंड्स वो एक्सट्रीम है। मतलब बहुत लार्ज क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल्स, दे आर बीइंग इंजेक्टेड टुवर्ड्स अवे फ्रॉम इट्स सरफेस, सो दे आर कॉल्ड सोलर विंड्स। तो वो चार्ज पार्टिकल्स आ रहे हैं। और दूसरा कॉस्मिक रेज भी आती है। तो वो कॉस्मिक रेज, उनकी वजह से ये वाली लेयर हमेशा, तो चाहे दिन हो या रात हो, कॉस्मिक रेज की वजह से तो ये वाली लेयर हमेशा रहेगी। तो इस वजह से जो आपकी एफ लेयर है, दैट विल ऑलवेज बी देयर। तो ये और टॉप मोस्ट लेयर को एफ लेयर बोलते हैं। और ये ऊपर में कॉस्मिक रेडिएशन जो होते हैं उनसे ये चार्ज हो जाती है, उसकी वजह से इसमें जो चार्ज पार्टिकल्स हैं दे आर मेंटेन। उसके बाद ई लेयर जो है, ये रात में वीक हो जाएगी, ये इतनी छोटी रह जाएगी, और दिन में जो है इसका साइज बढ़ जाएगा। तो ये ई लेयर हो गई। एंड देन फिर उसके बाद जो डी लेयर है, ये डी लेयर जो है केवल और केवल दिन में जब रेडिएशन बहुत ज्यादा होगा, देन ओनली दिस these गैस पार्टिकल्स विल बिकम चार्ज। अदरवाइज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है और उसका पॉजिटिव पार्टिकल दूसरा घूम रहा है, दोनों रिकम्बाइन होकर फिर न्यूट्रल बन जाएंगे। इसके नीचे तो जितने भी गैस पार्टिकल थे सब न्यूट्रल थे, लेकिन यहाँ पर चार्ज होने लगे। लेकिन जैसे ही रात हुई, ये जैसे ही सोर्स ऑफ रेडिएशन बंद हुआ, ये दोबारा से कंबाइन हो गए, न्यूट्रल हो गए। तो डी लेयर आपकी गायब हो जाती है दिन के अंदर। इट एग्जिस्ट ओनली ड्यूरिंग द डे नाइट, सॉरी डी लेयर डिसअपियर्स ड्यूरिंग द नाइट, जब सन रेडिएशन बंद हो जाता है। आपका ई लेयर जो है वीक हो जाता है, और एफ लेयर आपका जो है दिन और रात सब बना रहता है, और दिन में इनफैक्ट F2 F1 में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, F2 F1 में। तो ई लेयर और एफ लेयर आर यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन 100 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर का हो सकता है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट का हो सकता है।
तो दे आर यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन, इनको रेडियो कम्युनिकेशन बोलते हैं। क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी एनर्जी की जो यूज होती है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है। तो मैंने अभी स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था, तो वो रेडियो फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज किया था, ठीक है। तो वही वाली कम्युनिकेशन के लिए यूज हो रही है। डी और एफ, सॉरी ई और एफ यूज होते हैं, डी वीक होती है तो इससे पास हो जाते हैं, यहाँ से जाने वाले रेडियो सिग्नल्स जो है दे विल पास थ्रू डी लेयर, तो डी लेयर इज नॉट ऑफ मच यूज, ई एंड एफ आर यूज्ड, राइट। तो डी लेयर की जो थिकनेस होती है, दिस इज बेसिकली जो आपकी डी फर्स्ट लेयर है 60 किलोमीटर से लेकर 90 किलोमीटर, 60 से 90 तक, और 90 से लेकर 150 तक आती है आपकी ई, और 150 से लेकर 600 तक जो जाएगी आपकी, या 300 या 600, 300 तक मेजर पार्ट होता है, तो इन्होंने 300 लिखा है यहाँ पे, यू कैन राइट इट अप टू 600 और 800, दिस इज योर एफ लेयर। तो ये कोई एक ऐसा तो है नहीं कि एकदम ही यहीं पे खत्म हो रहा है, इट्स अ वेरी, तो वो धीरे धीरे रेयर होती जाएगी, तो यू हैव टू डिसाइड कि कहाँ पे रुकना है। तो 150 ऑनवर्ड जो है आपकी अप टू 600 मीटर किलोमीटर इफ यू से, देन इट इज एक्सेप्टेबल। तो ये आपकी एफ लेयर है। तो एफ लेयर को इन द ऑनर ऑफ एडवर्ड एप्लीटॉन, तो एप्लीटॉन लेयर बोलते हैं इसको, एफ लेयर को। एडवर्ड एप्लीटॉन को नोबेल प्राइज भी मिला था इस डिस्कवरी के लिए। तो दिस एफ लेयर इज कॉल्ड योर एप्लीटॉन लेयर, नीचे लिख देते हैं। सो योर this F layer will be called a Appleton layer, Appleton layer, या फिर Appleton बर्नेट लेयर। बर्नेट भी अब वैसे कोई और बोल दे, अजय विजय लेयर, तो उसी तरीके से एप्लीटॉन बर्नेट दो साइंटिस्ट के नाम है, उनके नाम पे उन्होंने जब इसमें कंट्रीब्यूशन किया इसकी अंडरस्टैंडिंग में, इनकी डिस्कवरी में, so that's why we call them Appleton layer. This is used for radio communication, long distance radio communication. तो बाकी मैं आपको नहीं जाना चाहूँगा साइंस में कि रेडियो कम्युनिकेशन कैसे होता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी के जो वेव्स हैं आप ऊपर भेजते हैं, उनको मॉड्यूलेट करके भेजा जाता है, फिर वहां से यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आ रही है चार्ज पार्टिकल से, वो डीमॉड्यूलेट किया जाएगा, रिसीव किया जाएगा, and then you will be able to listen to it. तो जैसे रेडियो पे सुनते हो FM 94.5 और something like that, तो AM वेव होती हैं, उनका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट होता है, एक होती है फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट करते हैं, तो FM वेव होती है। तो दे AM एंड FM बोथ आर योर रेडियो वेव्स, तो रेडियो कम्युनिकेशन से आएंगे। आपको AM FM जानने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आपको बस इतना जानना रेडियो कम्युनिकेशन। लेकिन ये रेडियो कम्युनिकेशन डिपेंडेंट होगा कि आपके दिन में कर रहे हैं, रात में कर रहे हैं, किस सीजन में कर रहे हैं, किस लैटिट्यूड पे कर रहे हैं, सनलाइट है कि नहीं है, कहीं क्लाउड्स तो नहीं है। इसलिए we have moved on to something very stable, तो हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन से आजकल यूज करते हैं। जितने भी रेडियो टेलीविजन सब पे जो ब्रॉडकास्टिंग होती है वो सब सैटेलाइट कम्युनिकेशन बेस्ड है, क्योंकि वहां पे रिलायबिलिटी है। तो अभी केवल हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में और कुछ रीजन्स में, और कुछ लोग शौक के लिए इनको यूज कर रहे हैं, चला रहे हैं, पुराने जमाने का है। अदरवाइज दिस इज नो मोर इन यूज, दिस मोड ऑफ कम्युनिकेशन। इसके नीचे जो वाली जो लेयर है ई लेयर, ई लेयर को भी कैनली हैवी साइड लेयर बोलते हैं, कैनली हैवी साइड। तो कैनली, ऑर्थर कैनली नाम के व्यक्ति थे, ऑर्थर कैनली और ओलिवर हैवी साइड। तो कोई हैवी साइड वगैरह नहीं, भारी भारी नहीं है ये। अगर आपका नाम होता ओलिवर कुमार या फिर आपका नाम होता कि आर्थर शर्मा, तो फिर बोल देते कि शर्मा कुमार लेयर। तो उसी तरीके से कैनली हैवी साइड लेयर नाम दे दिया ई लेयर को। 1902 में ये दोनों वैज्ञानिक जो है इसको इंडिपेंडेंटली डिस्कवर करते हैं। तो कैनली, तो ऑर्थर कैनली और ओलिवर हैवी साइड के नाम पे कैनली हैवी साइड लेयर। तो हर अंग्रेजी के शब्द का मतलब नहीं होता, ये बस नाम है। और नीचे है आपकी डी लेयर, जो दिन में रहेगी रात में गायब हो जाएगी। तो ये है। और आपके आइनोस्फीयर का जो यूज है, आइनोस्फीयर का यूज है वो लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन में होता है। 100 से लेकर 1000 किलोमीटर तक आप कम्युनिकेट कर सकते हैं
रेडियो वेव्स या हाई फ्रीक्वेंसी वेव बोल सकते हो इनको, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स यूज होती हैं उसमें। बहुत ज्यादा डिटेल्स में न जाने की आवश्यकता है। एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है एटमॉस्फेयर की कौन सा पार्ट जो है विच इज यूज फॉर कम्युनिकेशन, यू सिंपली आंसर दैट कि जी डी लेयर, सॉरी आइनोस्फेरिक लेयर, जहां पर चार्ज पार्टिकल्स हैं। दूसरा सवाल कोई कोचिंग वाला आपको परेशान करने के लिए पूछेगा डी साइड कैनली या कैनली हैवी साइड लेयर, या फिर आपको पूछ सकता है कि जे एप्लीटॉन लेयर कौन सी लेयर होती है, या दिन रात में क्या चेंजेस होते हैं, और या फिर ये कॉस्मिक रेडिएशन एंड सोलर विंड्स जो आती हैं दोनों को कंट्रीब्यूशन सोलर रेडिएशन से भी होता है। डी क्यों डिसअपियर हो जाती है ज्यादा, वो पूछा जा सकता है। और ये कम्युनिकेशन क्यों यूज नहीं होता आजकल, क्योंकि ये रिलायबल नहीं है। दिन रात पे डिपेंड करेगा, सीजन पे डिपेंड करेगा, लैटिट्यूड पे डिपेंड करेगा, क्लाउड्स पे डिपेंड करेगा। और सन स्पॉट साइकिल भी होती है 11 साल की, तो सन से कभी बहुत ज्यादा जो है वो आ रहे हैं आपके सोलर विंड्स, कभी बहुत कम आ रहे हैं, तो दे विल चेंज इट, तो इसलिए रिलायबल नहीं है, तो वी डोंट यूज इट मच। तो दिस इज फॉर दैट ओनली। अब बचता है आपको मैग्नेटोस्फेरिक पार्ट के अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में, मैग्नेटोस्फेयर के बारे में। प्रोबब्ली आई थिंक आई शुड टेक दैट टुमारो। तो ये मैग्नेटोस्फेयर ये समझ लीजिए कि ये अर्थ से जो है, अर्थ से जा रहे हैं इधर की तरफ, ये सोलर विंड्स आ रहे हैं आपके। सोलर विंड्स जो आ रहे हैं ये सोलर विंड्स ये चार्ज पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, हीलियम प्लस, जिसको अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं। तो दीज आर चार्ज पार्टिकल्स, स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। एक जैसे पानी की स्ट्रीम जाती है, नदी बोलते हैं, उसी तरीके से ये ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इज बीइंग रेगुलरली, मतलब विंड्स हैं, दे आर रेगुलर। तो ये आ रही है यहाँ पे। अर्थ का भी अपना मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का भी अपना मैग्नेटिक फील्ड है। तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या कर रहा है, वो क्या करेगा, ये जो है इंटरेक्ट करेंगे उसे। सो व्हेन दे विल इंटरेक्ट, दे विल कंप्रेस इट टू सम लेवल। तो ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का ये आउटर लिमिट था, लेकिन इसको प्रेस करके, कंप्रेस करके इसको यहाँ तक ले आए, ठीक है, यहाँ तक। ये मैग्नेटोपॉज बोला जाता है, ये मैग्नेटोस्फीयर। तो मैग्नेटोस्फीयर क्या हो गया, वो स्फीयर जहां तक मैग्नेटिक, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस जाता है, जियो मैग्नेटिक फील्ड जो है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है, उसका इन्फ्लुएंस जहां तक होता है, आप उसे मैग्नेटोस्फीयर बोलते हो। तो यहाँ पे ये जो है दे स्टार्ट अट्रैक्ट एक्टिंग, तो ये जो है विंड्स जो है इसे कंप्रेस करते हैं, ये भी इसे रेजिस्ट करता है। फाइनली ये क्या है, ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं दे आर मूव टुवर्ड्स पोल्स। यहाँ पे ये अरोरल लाइट्स दिखाई देती हैं आपको, सो यू सी देम। मैंने बताया था कि जो थर्मोस्फेयर वाला पार्ट है वहां पे आपको अरोरल लाइट दिखाई देती थी, दे विल बी सीन। क्योंकि ये अब ये चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे तो यहाँ पे जो एयर है उसको इंटरेक्ट करेंगे, तो एयर आपका वो हीटअप हो जाएगा। तो जब कई बार आपने देखा होगा लाइटनिंग होती है, तो लाइटनिंग में क्या हो रहा है, एयर कॉलम को एक्सट्रीमली ज्यादा हीटअप कर दिया गया है, तो ब्राइटली चमकता है। और साउंड वेव उसके जो है एक्सप्लोजन से होती है वहां पे। तो साउंड वेव वहां से, साउंड वेव जो है तो वो थंडर स्टॉर्म की तरह दिखाई देने लगती हैं आपको। और जो है लाइटनिंग की वजह से जो एयर कॉलम हीटअप हो गया है, वो आपको लाइट्स के फॉर्म में दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, एक साथ नहीं हो रहा है। एक लार्ज यहाँ पे ह्यूज स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स इज कमिंग, दैट्स व्हाई ब्यूटीफुल लाइट यू विल सी इन द स्काई। तो लोग टूरिज्म के लिए भी जाते हैं पोलर एरियाज में। नॉर्थ पोल पे इनको अरोरल बोरियलिस बोलते हैं, साउथ में ऑस्ट्रेलिया है तो अरोरल ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं, नॉर्थ में बोरियल फॉरेस्ट है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट को बोरियल फॉरेस्ट भी बोलते हैं। वहां पे जो लाइफ है ग्राउंड पे नहीं होती, ऊपर में होती है, तो बोरियल लाइफ होती है। बोरियल मींस जो हाइट, मतलब प्लांट्स में जो स्पीसीज प्लांट के टॉप पे रहते हैं, तो वो वाली लाइफ डोमिनेंट होती है वहां पे। तो इसलिए अरोरल बोरियलिस नॉर्थ पोल की तरफ है तो इनको बोरियलिस, अरोरल बोरियलिस लाइट बोलते हैं, और साउथ में है तो इनको बोलते हैं ऑस्ट्रेलिस। तो अरोरल बोरियलिस एंड अरोरल ऑस्ट्रेलिस लाइट्स हैं। मतलब आपको मैग्नेटिक स्टॉर्म्स या मैग्नेटोस्फीयर उतना डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आई कैन टीच इट, बट अगेन आधे लोगों के सर से जाएगा, और बाकी को उतनी आवश्यकता नहीं है। अब ये बोलने लगो नहीं नहीं सर हमें ये तो बताइए कि वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट क्या है, कैसे पता चला, तो वो सब बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप ये समझो कि सोलर विंड्स जो आ रही है, सम पोर्शन गो टुवर्ड्स पोल्स, यहाँ पे अरोरल लाइट्स दिखाई देती, बस आपके एटमॉस्फेयर ने इन सोलर लाइट से बचा लिया मैग्नेटिक फील्ड ने। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता
तो ये सोलर लाइट्स जो विंड्स आ रही थी आपकी ओजोन लेयर को स्ट्रिप ऑफ कर देती हैं, आपके एटमॉस्फेयर को स्ट्रिप ऑफ कर देती हैं। आपका एटमॉस्फेयर ये आपके मार्स के साथ क्या हुआ है, मार्स का मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड हैज मार्स लॉस्ट इट्स मैग्नेटिक फील्ड। तो आज उसका एटमॉस्फेयर जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर का जस्ट 1% है, क्योंकि जितना भी एटमॉस्फेयर था वो सोलर विंड्स ने वाइप आउट कर दिया उसका, जस्ट 1% एटमॉस्फेयर बचा है मार्स पे। तो इट हैज अ वेरी थिन एटमॉस्फेयर, 1% ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में। बताओ अर्थ पे जो गैसेस का वॉल्यूम है, जितने अमाउंट ऑफ गैस अर्थ ने अट्रैक्ट कर सकता है, उसका 1% जो है अट्रैक्ट कर रखा है मार्स ने। तो कोई मार्स का साइज इतना छोटा नहीं है अर्थ से। अर्थ अगर 6400 किलोमीटर रेडियस की है, तो वो कोई 4000 किलोमीटर रेडियस का है मार्स। लेकिन मार्स का भी ग्रेविटेशन पुल सफिशिएंट है, लेकिन वहां पे सोलर विंड्स ने वाइप आउट कर रखा है। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपके एटमॉस्फेयर को इंटैक्ट कर रखने में। तो ये नहीं तो ये यू मस्ट हैव लॉस्ट योर ओजोन लेयर, टॉप एटमॉस्फेयर एंड मोस्ट ऑफ द गैसेस, एंड आपका एटमॉस्फेयर बड़ा थिन हो गया होता। तो ये एटमॉस्फेयर का बस एमबीएस के अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर के मैग्नेटिक फील्ड का ये कंट्रीब्यूशन है। ये एक्चुअली कोई अलग वो है स्टार। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है प्लैनेट्स में भी है, स्टार्स में भी है। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जहां तक एक्सटेंड करता है आप उसे मैग्नेटोस्फीयर बोलते हैं। सन का मैग्नेटिक फील्ड जहां तक एक्सटेंड करता है आप उसे हेलियोस्फीयर बोलते हैं। तो इनफैक्ट पूरे सोलर सिस्टम को भी अर्थ ये जो है आपका सन का मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोटेक्ट करता है, कॉस्मिक पार्टिकल से को आने से बचाता है, मतलब बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स को एंटर करने से रोकता है टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो उसको हेलियोस्फीयर बोलते हैं। हालांकि हम ये एक हेड्रा करके स्टार है, तो उसका दिखा रखा है कि जनरल दिस इज हाउ इट्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोटेक्ट्स। तो यू डोंट हैव टू गो इनटू दैट पिक्चर्स। जैसे सन का है, तो सन का भी आपके सन का भी ये जो हेलियोस्फीयर है दैट विल प्रोटेक्ट ऑल द प्लैनेट, इट इज प्रोटेक्टिंग टू अ लार्ज एक्सटेंट। यहाँ कॉस्मिक रेडिएशंस जो आ रहे हैं तो उनसे इनको प्रोटेक्ट करता है, लेकिन ऑफ कोर्स सर्टेन अमाउंट विल एनीवे क्रॉस। तो कई बार हेलियोस्फीयर कंफ्यूज ना हो तो मैंने जस्ट नाम ले दिया है। आई होप यू कुड अंडरस्टैंड सम ऑफ द थिंग्स टुडे। We will continue with the major part of your actual climatology. This was just basic layer, ऊपर एटमॉस्फेयर के साइंस वगैरह आपको समझाना था। कल से जो बेसिकली सभी लोग समझते हैं, प्रेशर बेल्ट, हीट रेडिएशन, इंसोलेशन, हीटिंग, अर्थ की कूलिंग कैसे हो रही है, क्या है, कौन सी थर्मल बेल्ट है, प्रेशर बेल्ट कौन सी है, ये परमानेंट विंड सिस्टम आपके कैसे हैं, फिर आपके ट्राई सेलुलर मॉडल्स जो हैं, जो इनको बोलते हैं फेरल सेल, पोलर सेल, हेडले सेल वगैरह, और किस तरीके से क्लाउड्स बनते हैं, हाउ रेनफॉल हैपेंस, ये चीजें आपके कल के लेक्चर में होंगी। सो थैंक यू। इफ देयर आर क्वेश्चंस आई वुड लाइक टू टेक देम। Questions, if I check, some people are saying okay. अरोरल लाइट कौन सी लेयर, ऑफ कोर्स अब तो बता दिया। अरोरल लाइट किसी लेयर से बिलोंग नहीं करती है, मैंने बताया था आपके थर्मोस्फीयर वाले रीजन में देखा। आई होप क्लियर हो गया होगा। मीडियम तो हिंदी था, हिंदी में नहीं होगा ये क्लास, तो हिंदी में तो नहीं हो सकता ये क्लास। हालांकि अगर आप समझ सकते हैं तो ये लैंग्वेज प्लेन है, प्लेन सिंपल है, एंड यू कैन, मैं तो पिक्चर से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। बस नाम है तो वो आपकी एडिशनल हेल्प वो होगा। इंसोलेशन, ओके, वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन सबको सनलाइट से ही मिलता है। कोल कैल्सिफेरस CHOLE होता है वो विटामिन D3 का नाम है, विटामिन डी का नहीं है। आई अंडरस्टैंड हिंदी मीडियम पीपल, you are having some problems, but I am trying as to the extent आप उनको यूज करने की कोशिश करें। चलिए, थैंक यू सो मच। नाउ पीपल आर लीविंग।